friends, I'm Hemant Agarwal, host and coordinator of webinar conducted by chshelpforum.com. This website is specifically relating to various issues that can be experienced in housing societies and will benefit both the managing committee and the CHS members. It has very simple language articles, draft of various applications, webinar videos, and more will be added as and when time permits. Objective of webinar is to create special bondings, which is not physically possible. Note that social bonding is very much necessary to avoid disputes and live in peace. Our webinar is for free knowledge and experience sharing, conducted in non-technical simple language, which can be understood by everyone. As far as possible, speaker will not speak technical or legal language. All friends are requested to listen carefully without interrupting the speaker. Questions in very brief will be taken up at the end of speaker session, and questions only relating to today's topic will be taken up, and other questions will be ignored. Today's topic is nomination, that is provisional membership, how it is done, required documents, when to grant, that is when can society grant, when can society refuse, what are the various rights of provisional memberships, whether provisional member has voting and contesting election rights, वगैरह वगैरह. आप सबको पता ही है कि नॉमिनी का मतलब है नॉमिनी ओरिजिनल ओनर का सिर्फ एक टाइटल ओनर का प्रतिनिधि है. इज ए ट्रस्टी. सिंपल शब्दों में सोचेंगे तो इज जस्ट लाइक ए केयरटेकर, ए चौकीदार, ए सिक्योरिटी गार्ड, ए वॉचमैन, नथिंग एल्स. Nominee has no rights to sell or to lease or transfer or again renominate, because he is not the title owner. So only a title owner को नहीं, जिसका नाम एग्रीमेंट में है. जिसका नाम एग्रीमेंट में है उसी का नाम आई रजिस्टर में होगा. जिसका नाम आई रजिस्टर में है उसी का नाम सिर्फ और सिर्फ शेयर सर्टिफिकेट पे होगा. अब चूंकि नॉमिनी यानी प्रोविजनल मेंबर, जिसको बाद में प्रोविजनल मेंबर बनाया जाता है, नॉमिनी टाइटल ओनर नहीं है, भले वो लीगल हायर ही क्यों ना हो, लेकिन वो टाइटल ओनर नहीं है. नॉमिनेशन फॉर्म जो है वो वसीयत नहीं होता है. इट इज नॉट ए टेस्टामेंटरी डॉक्यूमेंट एंड कैनॉट बी टेकन एज द लास्ट टेस्टामेंटरी विश ऑफ द डिसीज्ड. डिसीज्ड का मतलब है ओरिजिनल फ्लैट ओनर. देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ नॉमिनेशन अंडर द सक्सेशन लॉज, जैसे कि हिंदू सक्सेशन एक्ट है वगैरह वगैरह. तो यहाँ पे हम ये समझ चुके हैं कि नॉमिनी कौन है. अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं नॉमिनी हूँ, ये रहा मेरा नॉमिनेशन फॉर्म, बट स्टिल उसके पास में मालकाना हक यानी ओनरशिप राइट फ्लैट का कभी भी नहीं हो सकता है. A minor person can be nominated, provided the owner or the executor of the nomination form appoints a legal guardian for the minor. How many nominees can be nominated? There is no limit. You can nominate one person or you can nominate even 10% also. There is no limit to it.
नॉन नेचुरल पर्सन्स कैन नॉट बी नॉमिनेटेड, जैसे कि लीगल एंटिटीज है, फर्म्स है, वगैरह वगैरह, दे कैन नॉट बी नॉमिनेटेड. नॉमिनेशन फॉर्म इज नॉट equal to a will document. Will means वसीयत. Nomination will only endorse सोसाइटी मेंबरशिप. सोसाइटी का मेंबरशिप का वैल्यू क्या है? 250 रुपया, या बहुत बहुत होगा तो आजकल जो नया फैशन निकला है 500 रुपया. बट ही नेवर गेट्स प्रॉपर्टी ओनरशिप राइट्स. Nominee becomes liable for all past, present, future liabilities of CHS. कई बार ऐसा होता है कि नॉमिनी बोलता है कि अ, मैं नॉमिनी हूं तो मैं प्रॉपर्टी का मालिक हो गया. प्रॉपर्टी का मालिक तो नहीं हो सकता है, लेकिन नॉमिनी बनने के बाद में जो मृतक है, जो डिसीज्ड मेंबर है, उसके कोई भी अगर लाइबिलिटीज वगैरह है, उसका कर्जा है या कुछ भी उसका बैंक का लोन है या गवर्नमेंट का ड्यूज वगैरह है, तो उसकी लाइबिलिटी इस नॉमिनी के ऊपर आ जाती है, क्योंकि वो रिकॉर्ड में आ जाता है डिसीज्ड ओनर के बिहाफ में. नॉमिनी इज ओनली ए चौकीदार, ए ट्रस्टी, a caretaker of the nominator. What is his purpose? Simply to take care of affairs of society affairs. सोसाइटी के देख रेख में का जो जिम्मेदारी है, सोसाइटी का मेंटेनेंस उस फ्लैट का, वो सारी जिम्मेदारी उस नॉमिनी की बन जाती है. अभी जब एमसीएस एक्ट अमेंड हुआ 2019 में, तो एक नया क्राइटेरिया क्रिएट किया गया, नया पदवी क्रिएट किया गया, नया टाइप ऑफ मेंबरशिप क्रिएट किया गया. उसको बोलने लगे प्रोविजनल मेंबरशिप. शब्द ही प्रोविजनल है. इट्स नॉट ए मेंबरशिप, इट इज ओनली ए प्रोविजनल मेंबरशिप. प्रोविजनल मेंबर बनने के बाद में ही बिकम्स ए फुल फ्लेज्ड मेंबर to the extent of certain things. I'll explain. So provisional member becomes a member and is liable for society outstanding dues. अगर पिछला ओनर का कोई ड्यूज वगैरह बाकी है, तो वो जो प्रोविजनल मेंबर बनता है, वो उस सोसाइटी का आउटस्टैंडिंग ड्यूज के लिए लायबल हो जाता है. प्रोविजनल मेंबर विल बी क्लासिफाइड एज एन ऑक्यूपायर इफ इज ऑक्यूपाइंग द फ्लैट. कानून में अभी तक ऐसा कुछ भी राइट नहीं दिया हुआ है कि प्रोविजनल मेंबर को उस फ्लैट में रहने का हक दिया गया हुआ है. ऐसा कोई राइट एमसीएस एक्ट में नहीं दिया हुआ है. So in other words, provisional member is liable for society outstanding dues and will be classified as an occupier for purposes of filing recovery proceedings for outstanding dues pending against the flat. आपको ये बता दूं कि जो रिकवरी ड्यूज होती है, वो कोई इंडिविजुअल पर्सन के अगेंस्ट में फाइल पेंडिंग नहीं होता है. वो फ्लैट के अगेंस्ट में हमेशा पेंडिंग दिखाया जाता है. फ्लैट का उस समय जो मालिक है या ऑक्यूपायर है, वो जवाबदार होता है ये सब चीजों के लिए. अब नॉमिनी बनने के लिए मकान मालिक ही जो है, ओनर है, जो टाइटल ओनर जो है, उसको क्या करना है? उसको ट्रिप्लिकेट में, 3 फॉर्म ट्रिप्लिकेट में सोसाइटी को सबमिट करना है. अगर मानो सोसाइटी में उस फ्लैट के लिए, फ्लैट नंबर 101 के लिए, देर आर 2 ओनर्स, अनिल एंड अनीता. तो अनिल will execute his own nomination form for his own share and Anita will execute another nomination form for her own share. तो अगर ये माना जाए कि 2 ओनर है, तो 2 नॉमिनेशन फॉर्म एग्जीक्यूट करना पड़ेगा. सिंगल फॉर्म एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे आप. एक आदमी अगर जॉइंटली एग्जीक्यूट किया हुआ है, तो सेकंड, जब तक दोनों नॉमिनी जो ओनर नहीं मर जाते हैं, तब तक नॉमिनेशन फॉर्म को एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे आप. ये नॉमिनेशन फॉर्म को 2 विटनेस से अटेस्ट करना है. 2 विटनेस का सही होना है, उसके अंदर नाम एड्रेस होना है,
अगर ये दो विटनेस नहीं है नॉमिनेशन फॉर्म पे किसी कारणवश, तो ये नॉमिनेशन फॉर्म इनवैलिड हो जाएगा। सोसाइटी बायलॉज के हिसाब से एक नॉमिनेशन फॉर्म फ्री है, मतलब आप बिगैर चार्जेस के सोसाइटी में वो नॉमिनेशन फॉर्म को फाइल कर सकते हो। लेकिन अभी सेकंड टाइटल ओनर या थर्ड टाइटल ओनर या फोर्थ टाइटल ओनर ने अपना अपना हिस्से के लिए नॉमिनेशन फॉर्म फाइल किया हुआ है, तो हर नॉमिनेशन फॉर्म के लिए बायलॉ में शायद 50 रुपया या 100 रुपए का प्रोविजन दिया हुआ है। तो हर नॉमिनेशन फॉर्म के लिए सोसाइटी को एक अलग से 100 रुपया देना है नॉमिनेशन फॉर्म के साथ में। उसके बाद में सोसाइटी का रबर स्टैंप और सिग्नेचर लेना है, एक्नॉलेजमेंट। और ये थर्ड कॉपी में होगा वो चीज, मतलब फर्स्ट कॉपी मास्टर कॉपी हुई, सेकंड कॉपी सोसाइटी जब आपका नॉमिनेशन फॉर्म एडमिट कर लेगा, रजिस्टर में एंट्री कर लेगा, तो सेकंड फॉर्म पे सेक्रेटरी का सिग्नेचर, तारीख, रेजोल्यूशन नंबर, नॉमिनेशन का रजिस्टर नंबर का एंट्री नंबर, वो सब एंट्री करके आपको सेकंड फॉर्म तब दिया जाएगा। अभी तुरंत आपको थर्ड नॉमिनेशन फॉर्म एक्नॉलेजमेंट के साथ में आपको वापस मिल जाएगा। आपको ये जो थर्ड नॉमिनेशन फॉर्म है इसको प्रिजर्व करके रखना है प्रॉपरली। और जब आपको सेकंड नॉमिनेशन फॉर्म सोसाइटी के एंडोर्समेंट के साथ में मिलेगा, एंडोर्समेंट का मतलब है सोसाइटी को मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग में लेगी, नॉमिनेशन फॉर्म चेक करेगी कि सब ठीक ठाक है या नहीं है, जो ओनर है उसी ने नॉमिनेशन फॉर्म फाइल किया है कि और किसी ने फाइल कर दिया है, ये पहले ही कोई नॉमिनेशन था उसने फाइल कर दिया हुआ है। ये सब काउंटर चेकिंग होता है मैनेजिंग कमेटी के मीटिंग में। और ये सारा काम टिपिकली सेक्रेटरी की जिम्मेदारी में होता है। जब सेक्रेटरी बोल देता है कि हाँ एवरीथिंग इज ओके, नॉमिनेशन फॉर्म मैनेजिंग कमेटी के मीटिंग में अप्रूव किया जाता है, इट हैज टू बी कंपल्सरीली प्रपोज्ड बाय सो एंड सो पर्सन, सेकेंडेड बाय सो एंड सो पर्सन। अगर किसी को ऑब्जेक्शन लेना है इस नॉमिनेशन फॉर्म के ऊपर, तो उसको वहीं पे दर्ज करना है। और जब तक वो ऑब्जेक्शन पूरा नहीं हो जाता तब तक नॉमिनेशन फॉर्म को पेंडिंग में रखा जाना चाहिए। अब बात आती है सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी की, कि सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी को सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी को प्रोविजनल मेंबरशिप फॉर्म कैसे रेफ्यूज करना है और कैसे एक्सेप्ट करके ग्रांट करना है। अगर सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी को यह पता चलता है कि मेंबर जो फ्लैट ओनर है जो गुजर गया, अगर वो डिफॉल्टर है या द ओरिजिनल ओनर इज लायबल फॉर सेक्शन 88 रिकवरीज, कभी कभी पुराना जो ओनर था उसके ऊपर मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स वगैरह का चार्ज लगा हुआ है, प्रूव हो गया हुआ है, लेकिन वो किसी कारणवश गुजर गया और वो रिकवरी का अमाउंट बाकी रह गया, ऐसे लोगों का भी नॉमिनेशन फॉर्म पेंडिंग रखा जाएगा, रिफ्यूज किया जाएगा कि आप उसका ओरिजिनल मेंबर का 100 रुपये बाकी है उसको भर दो 88 सेक्शन के अंडर में, तो आपका नॉमिनेशन फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा और आपको प्रोविजनल मेंबर बनाया जाएगा। दूसरा, ओरिजिनल मेंबर डिफॉल्टर है, सोसाइटी का 200 रुपये बाकी है, उसको भरो पहले, फिर आपका प्रोविजनल मेंबरशिप ग्रांट किया जाएगा। अगर किसी कारणवश ओरिजिनल मेंबर का फ्लैट मॉर्गेज्ड है बैंक के पास में, या किसी कोई लीगल नोटिस आया हुआ है ओरिजिनल मेंबर के लीगल हायर्स का या क्लेमेंट्स का, या कोई प्राइवेट लेंडर का ही नोटिस क्यों नहीं है, लीगल नोटिस क्यों नहीं आया हुआ है, या रिस्ट्रेनिंग नोटिस बाय स्टैट्यूटरी एजेंसीज। स्टैट्यूटरी एजेंसीज का मतलब हो गया जैसे जीएसटी अधिकारी हो गया, जैसे इनकम टैक्स अधिकारी हो गया, जैसे बीएमसी का असेसमेंट अधिकारी हो गया, जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट का असेसमेंट अधिकारी हो गया, वगैरह वगैरह। या यानी कोई भी कोर्ट ऑर्डर भी आके पड़ा हुआ है सोसाइटी के नाम पे कि इस फ्लैट के ऊपर ये प्रॉब्लम है, ये पैसा पेंडिंग है, वगैरह वगैरह, ये लीगल लिटिगेशन पेंडिंग है, इस फ्लैट को ट्रांसफर ना किया जाए या एलियनेट ना किया जाए या थर्ड पार्टी राइट्स क्रिएट ना किया जाए। ये सारी कंडीशंस पे सोसाइटी को प्रोविजनल मेंबरशिप नहीं ग्रांट करना चाहिए। ये सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी की लाइबिलिटी है कि अगर वो डिफॉल्टर है
अगर वो इस सेक्शन 88 का रिकवरी का लाइबिलिटी है उसके ऊपर, या तो फ्लैट मॉर्गेज है। फ्लैट मॉर्गेज का मतलब आप देखिए कैसा होता है कि जब बैंक लोन एनओसी के लिए वो मेंबर आपके पास आता है तो सोसाइटी लिख कर देती है कि इसका मॉर्गेज हम अपने रिकॉर्ड में मार्क करेंगे, और फर्दर ट्रांसफर्स या सेल वगैरह वगैरह, सेल हो, गिफ्ट डीड हो, रिलीज डीड हो, या बाकी कोई भी तरीके से हम इसमें कोई भी एंडोर्समेंट करने अलाउ नहीं करेंगे। तो अगर आपने ऐसा अंडरटेकिंग दे दिया बैंक को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, तो आप प्रोविजनल मेंबरशिप भी नहीं ग्रांट कर पाओगे। कोई भी कोर्ट प्रोसीडिंग्स है तो भी नहीं ग्रांट कर पाओगे, और अगर कोई लीगल लिटिगेशन पेंडिंग है, मानो मालिक का दो तीन लीगल हायर है, बेटा है, बेटी है, पोता है, पोती है, बीवी है, वगैरह वगैरह, अगर उन्होंने कोई कोर्ट में केस कर रखा है तो भी आप ये प्रोविजनल मेंबरशिप ग्रांट नहीं कर पाओगे। आपको जानकारी में ये बता दें कि नॉमिनी आप किसी को भी बना सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप नॉमिनी अपने सिर्फ वारिसदारों को ही बनाओ या लीगल हायरों को ही बनाओ। आप नॉमिनी वो नीचे जो भाजी वाला बैठा हुआ है उसको भी बना सकते हो, आप अपने दोस्त को भी बना सकते हो, वो दूध वाला है, पान वाला है, किसी को भी बना सकते हो। कोई बंदिश नहीं है कि नॉमिनी आप अपने लीगल हायर को ही बनाना चाहिए, और ऐसे केसेस हैं ऑलरेडी। एक दो वेबिनार के पहले मैंने ये बताया था कि कई बार क्या होता है कि 20 बरस से आप उस पान वाले के पास में जाते रहते हो, अच्छा लगने लगता है, एक दिल का रिश्ता हो जाता है, फिर उसके मन में उसके प्रति अच्छी भावनाएं आती हैं, तो वो बहाव में बह के वसीयत भी उसके नाम पे, वसीयत में भी एक छोटा सा हिस्सा उसके नाम पे बना सकता है, पूरा वसीयत भी उसके नाम पे बना सकता है, नॉमिनेशन भी उसके नाम पे बना सकता है, वगैरह वगैरह वगैरह। उसकी कोई बंदिश नहीं है कि नॉमिनेशन सिर्फ और सिर्फ लीगल हायर को ही बनाना चाहिए। सोसाइटी विल एक्सेप्ट नॉमिनी फॉर्म्स, नॉमिनेशन फॉर्म्स, record it in MC meeting. Secretary will sign and stamp nomination form, enter into nomination register, and give original signed second copy of nomination form to the owner जिसने नॉमिनेशन फॉर्म एग्जीक्यूट किया, मकान का मालिक, फ्लैट का मालिक। और उसको वो ये जो कॉपी है, सेकंड वाली कॉपी जिसमें नॉमिनेशन का पूरा डिटेल्स है, ओरिजिनल कॉपी जिसमें सोसाइटी के सेक्रेटरी ने ठप्पा लगाया हुआ है, अपना साइन किया हुआ है, एमसी रेजोल्यूशन का डेट डाला हुआ है, नॉमिनेशन रजिस्टर में एंट्री सीरियल नंबर डाला हुआ है, देन ओनली दिस नॉमिनेशन फॉर्म्स बिकम्स लीगली इन्फोर्सेबल। जैसे मैंने पहले बताया कि बायलॉज के हिसाब से फर्स्ट नॉमिनेशन फॉर्म इज फ्री, ऑल सब्सिक्वेंट नॉमिनेशन फॉर्म इज टू बी चार्ज 50 रुपीज और 100 रुपीज, जो भी आपके अप्रूव्ड बायलॉज में ये रिकॉर्डेड। अगर अप्रूव्ड बायलॉज में 50 रुपीज है तो 50 रुपीज देना, अगर आपके अप्रूव्ड बायलॉज में 100 रुपीज है तो 100 रुपीज देना। ये बायलॉ के ऊपर है, इज नॉट नेसेसरी कि मॉडल बायलॉज में जो लिखा हुआ है वही उसी पे आप लगे रहोगे। प्रोविजनल मेंबर को किसी भी प्रकार का एनओसी नहीं देना चाहिए, गैस के लिए हो या पासपोर्ट के लिए हो या कुछ भी हो। इट शुड नॉट बी गिवन टू प्रोविजनल मेंबरशिप बिकॉज ही इज एन ओनली provisional member to deal only with society affairs. He is not a full-fledged member. full-fledged member बनने के लिए उसको हाई कोर्ट से, अगर मुंबई शहर में प्रॉपर्टी है तो उसको मुंबई हाई कोर्ट से या तो लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बनवा के लाना है, और अगर वसीयत है उसके फेवर में तो वसीयत का प्रोबेट करा के लेके आना है। जैसे मैंने बताया कि नॉमिनी तो लोकल पान वाला भी हो सकता है, लेकिन जो गुजर गया उसकी बीवी भी हो सकती है, उसके बच्चे भी हो सकते हैं, किसी कारणवश नाराज होकर उन्होंने उसको कुछ भी नहीं दिया, लेकिन कानून के हिसाब से, मतलब हिंदू सक्सेशन, हिंदू है तो हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से उनका हक बरकरार है, फिक्स्ड है, फाइनल है, वो क्लेम कर ही सकते हैं ये सब चीज, इवन दो द नॉमिनेशन स्टैंड्स इन द नेम ऑफ थर्ड पार्टी।
अगर प्रोविजनल मेंबर फ्लैट मॉर्गेज है या डिफॉल्टर लायबल है, वो सेक्शन फ्लैट ओनर लायबल है सेक्शन 88 के रिकवरीज के लिए, या कोई प्राइवेट लेंडर का भी नोटिस आके पड़ा हुआ है, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का और बैंक का मॉर्गेज दिया हुआ है, या कोई सरकारी एजेंसीज के रिस्ट्रेनिंग नोटिस आके पड़े हुए हैं, या कोई कोर्ट ऑर्डर आके पड़ा हुआ है, या लीगल हायर्स का कोई लीगल लिटिगेशन चल रहा है कोर्ट में, तो ऐसी हालत में अगर मैनेजिंग कमेटी ने प्रोविजनल मेंबर को अलाउ कर दिया बेचने के लिए या फर्दर मॉर्गेज करने के लिए या लीज करने के लिए या थर्ड पार्टी राइट क्रिएट करने के लिए, then the entire managing committee becomes liable, criminally liable for cheating, fraud, misrepresentation, breach of trust वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर ये सारी कंडीशंस हैं तो सोसाइटी शुड नेवर ग्रांट even a provisional member to that person. Now, a nominee, when he applies for provisional membership, what all documents is required to be given to the society? उसमें से एक होता है नोटराइज्ड कॉपी ऑफ नॉमिनेशन फॉर्म, जो सेकंड कॉपी जो मैंने आपको बताया, जिसके अंदर सोसाइटी का सेक्रेटरी ठप्पा है, नॉमिनेशन रजिस्टर का सीरियल नंबर है वगैरह वगैरह। दैट इज योर सेकेंड कॉपी ऑफ द ओरिजिनल नॉमिनेशन फॉर्म। उसकी कॉपी नोटराइज करके एप्लीकेशन के साथ में सोसाइटी को देनी है। और क्या देना है? इंडेमनिटी बॉन्ड। वो जो बायलॉज में 200 रुपए का इंडेमनिटी बॉन्ड लिखा है वो नल एंड वॉइड है। बायलॉ बहुत पुराना है, स्टैम्प ड्यूटी एक्ट बदली हो गया है, अभी इंडेमनिटी बॉन्ड 500 रुपया के ऊपर किया जाता है। सो इंडेमनिटी बॉन्ड ऑफ ऑन 500 रुपीज स्टैम्प पेपर विल बी एग्जीक्यूटेड बाय ऑल द नॉमिनीज। अगर समझो नॉमिनेशन फॉर्म में 4 लोग हैं तो एक सिंगल इंडेमनिटी बॉन्ड में चारों नॉमिनी को, सोसाइटी को इंडेमनीफाई करना है अगेंस्ट एनी क्लेम्स, लॉसेस, लीगल डिस्प्यूट्स, विच, और उस इंडेमनिटी बॉन्ड में उसको अंडरटेकिंग लेना है सारे नॉमिनीज को कि मैं ये प्रोविजनल मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर रहा हूं बेस्ड ऑन दिस नॉमिनेशन फॉर्म, हेंस मैं ये फ्लैट बेचूंगा नहीं, ये फ्लैट में मॉर्गेज नहीं करूंगा, या मैं लीज पे नहीं दूंगा, या मैं कोई थर्ड पार्टी राइट क्रिएट नहीं करूंगा मैं। और उसके साथ में उसे मेंबरशिप एंट्रेंस फीस का एक चेक देना है। अगर 4 नॉमिनी है तो 400 रुपए देना है, और अगर एक नॉमिनी है तो 100 रुपए का मेंबरशिप एंट्रेंस फीस देना है। और उसके साथ में चूंकि वो मेंबरशिप ट्रांसफर होगी उसके अंदर, भले वो प्रोविजनल मेंबर ही क्यों ना हो, पर रिकॉर्ड में तो लेना है उसको, इसके लिए उसको 500 रुपया मेंबरशिप ट्रांसफर फीस भी देना है। और उसके साथ में ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट देना है। आप ये ध्यान रखिए कि जब तक नॉमिनल मेंबर नॉमिनी को प्रोविजनल मेंबरशिप नहीं बनाया जाता, उसका कोई भी हक सोसाइटी के कामकाज में नहीं होगा। इसके लिए उसको ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट भी देना कंपलसरी है, ताकि उसका नाम वगैरह एंडोर्स किया जा सके। अब शेयर सर्टिफिकेट पे क्या एंडोर्स करना है? शेयर सर्टिफिकेट, अभी जैसे नॉमिनी का नाम है अनिल है और अनीता है, तो सोसाइटी क्या लिखेगी? अनिल शर्मा, अनीता शर्मा, और एक रिमार्क मारेगी नॉमिनी, उसी नाम के आगे एज नॉमिनी लिखना है उसको शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर भी। और सेम चीज आई रजिस्टर में एंट्री के समय भी वहीं पे भी यही लिखना है नॉमिनी। ये क्यों लिखना है आपको? जब आप नॉमिनी लिखोगे तो नॉमिनी चाहकर भी उस चीज को बेच नहीं पाएगा, क्लेम नहीं कर पाएगा किसी चीज को, और वो अगर डिस्प्यूट क्रिएट करता है तो सर्च रिपोर्ट के समय ये सारा डिटेल्स उसके सामने आ जाता है। कई सोसाइटी प्रिकॉशन के तौर पे अगर डिस्प्यूट आया हुआ है, या सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी को ऐसा भ्रम होता है, या
ख्याल आता है कि प्रिकॉशनरी तौर पे हम इसको बोले कि आप न्यूज़पेपर में इसका नोटिस पब्लिश करो। I'll request all members to keep their microphones on mute. It is a request. It's causing disturbance to others also. तो जैसे मैंने पहले बताया कि न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन भी दे सकते हो, 2 लोकल न्यूज़पेपर में, कोई भी सस्ता वाला न्यूज़पेपर होगा उस तालुका में जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। जैसे मानो उदाहरण के तौर पे अगर मुंबई शहर में प्रॉपर्टी है तो मुंबई शहर में जो लोकल न्यूज़पेपर है सबसे सस्ता वाला है तो भी उसको 2 न्यूज़पेपर में नोटिस देना है। ये नोटिस सोसाइटी के लेटर हेड के अंदर में देना है, नॉमिनी नहीं देना है, नॉमिनी से मत दिलवाइए, सोसाइटी के लेटर हेड से देना है, इनवाइटिंग एनी ऑब्जेक्शंस वगैरह वगैरह, एनी क्लेम्स, सो एंड सो। तो मैनेजिंग कमेटी को अपने मीटिंग में क्या देखना है, तो जिसकी एप्लीकेशन आई है नॉमिनी को उसको स्क्रूटिनाइज करना है प्रॉपरली। वो जो इंडेमनिटी बॉन्ड है वो देखना है कि वो 500 रुपए पे है या नहीं है। इंडेमनिटी बॉन्ड शुड बी ड्यूली नोटरी रजिस्टर्ड। नोटरी रजिस्टर का मतलब है नोटरी के पास में भी एक रजिस्टर होता है, उसका नोटरी का सीरियल नंबर उस इंडेमनिटी बॉन्ड में डाला जाता है। दैट इज कॉल्ड नोटरी रजिस्टर। इट डज नॉट हैव मच लीगल वैल्यू बट इट डेफिनेटली हैज सम लीगल वैल्यू ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ डिस्प्यूट। फिर मैनेजिंग कमेटी विल सी दैट द फी मेंबरशिप ट्रांसफर फी चेक्स, जैसे मैंने पहले बताया, मेंबरशिप एंट्रेंस फीस और मेंबरशिप ट्रांसफर फीस ये आया हुआ है या नहीं आया हुआ है, न्यूज़पेपर में नोटिस छापा या था नहीं था। मैनेजिंग कमेटी को ये देखना है कि भाई इस फ्लैट के अगेंस्ट में कोई आउटस्टैंडिंग ड्यूज तो नहीं है, कोई रिकवरी तो नहीं बाकी है, कोई सरकारी नोटिस तो आके नहीं पेंडिंग पड़ा हुआ है, वगैरह वगैरह। जैसे मैं आपको 2 बार एक्सप्लेन कर चुका, वो सारी चीजें आपको उस मैनेजिंग कमेटी को देखना है। फिर मैनेजिंग कमेटी को ये भी देखना है अपने सोसाइटी के रिकॉर्ड में उस इंडिविजुअल फ्लैट का रिकॉर्ड फाइल निकाला जाएगा और उसमें देखना है कि भाई कोई क्लेम्स पेंडिंग तो है तो नहीं है, कोई लीगल डिस्प्यूट तो नहीं है। जैसे अनिल शर्मा के नाम पे अगर कोई लीगल डिस्प्यूट है, कोर्ट का नोटिस आता है, तो सोसाइटी क्या करती है, कोर्ट का नोटिस का जो पेपर आता है उसको मेंबर के इंडिविजुअल फाइल में लगाना है, अलग से कोई फाइल में नहीं लगाना है। तो ये सारी चीजें चेक करेंगे। उसका मेंटेनेंस बिल देखेंगे कि इसका कोई आउटस्टैंडिंग ड्यूज है या नहीं है। उस इंडेमनिटी बॉन्ड में देखेंगे कि नॉमिनी ने अंडरटेकिंग की दिया है या नहीं दिया हुआ है, कि मैं इसे नहीं बेचूंगा, मैं इसे मॉर्गेज नहीं करूंगा, मैं इसे लीज नहीं क्रिएट करूंगा, मैं इसको एलिनेट नहीं करूंगा, मैं कोई थर्ड पार्टी राइट नहीं क्रिएट करूंगा, वगैरह वगैरह वगैरह। ऑल्सो इट हैज टू चेक जो नॉमिनेटर है जिसने नॉमिनेशन फॉर्म बनाया वो फ्लैट ओनर था भी या नहीं था, या पिछले 2-3 मैनेजिंग कमेटी ने नॉमिनेशन फॉर्म आया आग बंद करके उसको एक्सेप्ट कर लिया और रिकॉर्ड भी कर लिया। तो सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी हैज टू टेक आउट इंडिविजुअल मेंबर्स फाइल और उस फाइल में उसका एग्रीमेंट देखना है और ये देखना है कि जिसने ये नॉमिनेशन फॉर्म एग्जीक्यूट किया हुआ है वो फ्लैट का मालिक है भी या नहीं है, और उसका नाम फ्लैट के एग्रीमेंट में दर्ज है या नहीं है। अगर ये सारी चीजें ठीक ठाक लगती है मैनेजिंग कमेटी को, तो मैनेजिंग कमेटी शुड पास एमसी रेजोल्यूशन, कमिटी रेजोल्यूशन टू ग्रांट प्रोविजनल मेंबरशिप। जब ये रेजोल्यूशन पास हो जाता है तो सोसाइटी का मैनेजर या सेक्रेटरी नॉमिनेशन रजिस्टर में उसका एंट्री करेगा। एंट्री इंडोर्स होगा सही सिक्के ऑफ द सेक्रेटरी से, वही सही सिक्का नॉमिनेशन के फॉर्म में भी एंडोर्स होगा। नॉमिनेशन रजिस्टर का सीरियल नंबर, सिर्फ एमसी रेजोल्यूशन से काम नहीं बनने वाला है, नॉमिनेशन रजिस्टर में एंट्री हुआ है या नहीं हुआ है ये चेक करना जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर एक 5-1 साल के बाद में डिस्प्यूट होता है, आदमी 20 साल तक जिंदा रह गया, नॉमिनेशन फॉर्म कई बार बदली कर दिया उसने, या वही नॉमिनेशन फॉर्म 20 साल तक पड़ा हुआ है, तो इट हैज टू बी अल्टीमेटली चेक्ड, इट हैज टू बी ड्यूली स्क्रूटिनाइज्ड। टिपिकली इट हैज टू बी डन बाय द
सेक्रेटरी ऑफ द सोसाइटी और एंड द मैनेजर ऑल्सो। और अगर कोई लीगल एडवाइजर है सोसाइटी का तो उससे ये स्क्रूटनी करवा के उससे प्रॉपर रिपोर्ट लेके फिर उस रिपोर्ट को मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग में लेके बेस्ड ऑन दैट मैनेजिंग दैट लीगल एडवाइजर्स रिपोर्ट यू शुड कैरी फॉरवर्ड। अब आता है कि प्रोविजनल मेंबर एक बार बन गया, आदमी बन गया प्रोविजनल मेंबर। कई बार क्या होता है कि प्रोविजनल मेंबर, फ्लैट ओनर है जो है वो अपने प्रोविजनल मेंबर अपने बेटे को बना देता है, अपनी बेटी को बना देता है, अपनी बीवी को बना देता है वगैरह वगैरह। तो उसे वहां पे रहने का अधिकार मिल जाता है ऑटोमेटिकली, है क्योंकि वो एक्ट में ही है उसके अंदर, उसका सक्सेशन एक्ट में ही है उस चीज का। लेकिन अगर किसी कारणवश वो प्रोविजनल मेंबर नॉमिनी वो किसी दोस्त को बना गया है, वो या पान वाले को बना गया हुआ है, तो अब वो पान वाला आके ये तो नहीं बोल सकता कि मुझे प्रोविजनल मेंबर बनाया हुआ है, अब तुम लोग खाली करो, बीवी बच्चे चलो भागो यहाँ से, मेरे को मेंबर प्रोविजनल मेंबर बनाया हुआ है इसके लिए मैं यहाँ पे आके रहूंगा। कानून में अभी तक ये प्रावधान या प्रोविजन नहीं दिया गया है कि प्रोविजनल मेंबर को रहने का अधिकार दिया गया है। और ऐसे टाइम पे अगर उसके लीगल हायर्स, बीवी बच्चे जो भी कोई है, अगर सोसाइटी को लीगल नोटिस देती है तो वो प्रोविजनल मेंबरशिप के एप्लीकेशन को एबेंस में रखा जाना है, सस्पेंड करके रखा जाना है, उस पर कोई भी कार्यवाही नहीं करना है। सो राइट्स ऑफ प्रोविजनल मेंबर हैज एनी एंड ऑल राइट्स ऑफ मेंबर विच इंक्लूड्स, प्रोविजनल मेंबर वोटिंग भी कर सकता है, प्रोविजनल मेंबर इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट कर सकता है, वो मैनेजिंग कमेटी मेंबर भी बन सकता है, और क्या बन सकता है, वो चेयरमैन भी बन सकता है, सेक्रेटरी भी बन सकता है, ट्रेजरर भी बन सकता है। और अगर मैनेजिंग कमेटी में नहीं है और मैनेजिंग कमेटी को कभी कोऑप्शन की जरूरत पड़ी, किसी वैकेंसी, कैजुअल वैकेंसी के टाइम पे कोऑप्शन की जरूरत पड़ी, तो प्रोविजनल मेंबर अगर ऑलरेडी बनाया हुआ है तो मैनेजिंग कमेटी इस प्रोविजनल मेंबर को मैनेजिंग कमेटी बना सकती है उसको ऑप्शन के माध्यम से। प्रोविजनल मेंबर कैन डिमांड एनी एंड ऑल डॉक्यूमेंट्स that are there inside the society records except those documents which belongs to any other। प्राइवेसी डॉक्यूमेंट्स कोई भी नहीं पूछ सकता है, उसके अलावा हर कोई डॉक्यूमेंट जो सोसाइटी के रिकॉर्ड में है, ऑल रजिस्टर्स, एनी एंड ऑल ऑडिट रिपोर्ट, बैलेंस शीट्स, एजीएम नोटिस, एजेंडास, मिनट्स, एसजीएम का भी सेम, मैनेजिंग कमेटी का भी सेम, सारा कुछ पूछ सकता है। प्रोविजनल मेंबर को पार्किंग राइट्स का भी अधिकार है। आप ये नहीं बोल पाओगे कि भाई तुम तो प्रोविजनल मेंबर हो, तुमको पार्किंग राइट नहीं है, ऐसा नहीं बोल पाओगे। प्रोविजनल मेंबर कैनॉट नॉमिनेट एनीबडी सिंस ही हिमसेल्फ इज ए नॉमिनी एंड नॉट ए फ्लैट ओनर। तो ये सारी चीजें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल जस्ट कंक्लूड इन 1 or 2 minutes। सोसाइटी को ये ध्यान रखना है, आपको भी यही ध्यान रखना है अगर आप टाइटल ओनर हो, कि आपका नाम फ्लैट के एग्रीमेंट में होना जरूरी है। आपका नाम सिर्फ और सिर्फ शेयर सर्टिफिकेट में इसके लिए आप नॉमिनेट कर सकते हो, दिस इज रॉन्ग। यू आर नॉमिनेटिंग based on that you are the property owner। A nomination form becomes legally null and void if it is received from anybody after the death of its member। Sometimes what happens कि वो मकान मालिक जो है, फ्लैट मालिक है, वो नॉमिनेशन फॉर्म बना देता है, किसी कारणवश सोसाइटी को नहीं दे पाता है वो, और नॉमिनेशन फॉर्म बनाने के बाद में
उसका एक्सीडेंट हो जाता है, वो मर मुरा जाता है, लेकिन नॉमिनेशन फॉर्म सोसाइटी के रिकॉर्ड में नहीं जा पाया तो मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग में भी नहीं ले पाएंगे आप। मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग में नहीं लिया तो अप्रूव भी नहीं होगा, और आई रजिस्टर और नॉमिनेशन रजिस्टर में भी आप एंट्री नहीं कर पाएंगे। सो और कोई आके देता है, उसकी बीवी बोलती है कि नहीं नहीं, इन्होंने एग्जीक्यूट किया था, बच्चा बोलता है एग्जीक्यूट किया था, वो पानुला आके बोलता है कि मेरे फेवर में एग्जीक्यूट किया था, तो नॉमिनेशन फॉर्म कैन बी टेकन एक्सेप्टेड ओनली फ्रॉम द टाइटल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। अगर नॉमिनी फिर से प्रोविजनल मेंबर बनने के बाद में अगर नॉमिनी फिर से नॉमिनी करता है दूसरे को, तो दैट इज ए क्रिमिनल ऑफेंस। If there is a specific power of attorney registered, स्पेसिफिक क्लॉजेस कि मैं इस आदमी को अधिकार देता हूं मेरे बिहाफ में नॉमिनेशन फॉर्म एग्जीक्यूट करे। मैं सिटी से बाहर हूं, मैं अमेरिका में बैठा हुआ हूं, लेकिन ये मैं एक एम्बेसी एंडोर्स्ड पावर ऑफ अटॉर्नी भेज रहा हूं सुरेश भाई के नाम पे। सुरेश भाई नॉमिनेशन फॉर्म एग्जीक्यूट कर सकता है, और मैं चाहता हूं कि सुरेश भाई सिर्फ मेरे बिहाफ में साइन करे। नॉमिनेशन फॉर्म पे सारे नाम जो मेरे पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर में लिखा है वैसे ही वो दर्ज करेगा। तो देन स्पेसिफिक पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर कैन फाइल नॉमिनेशन फॉर्म with the society, provided there is a clause that he can, in the power of attorney, that he can file nomination form and the nominee names are also mentioned in the power of attorney. A power of attorney document is not a nomination form under the MCS Act, so that has to be taken care of. अभी पावर ऑफ अटॉर्नी आपको पता होना चाहिए कि पावर ऑफ अटॉर्नी हैज टू बी स्टैम्प ड्यूटी पेड। पावर ऑफ अटॉर्नी का स्टैम्प ड्यूटी 500 रुपया है, and it has to be registered. This is 100% compulsory. Nomination form can be revoked or cancelled, and fresh nomination form can be filed by the title owner, that is a flat owner, as many times as he wants to. और उसके लिए पहले वाला नॉमिनी, जो पहले वाले नॉमिनी के फॉर्म में नाम दर्ज है, उसका परमिशन या एनओसी लेने की आवश्यकता नहीं है। हु कैन बी नॉमिनेटेड, आप नॉमिनी किस किस को बना सकते हो? आप अपने लीगल हायर बेनिफिशियरी को नॉमिनी बना सकते हो। ज्यूरिस्टिक पर्सन मतलब कंपनीज है, कॉर्पोरेट्स है वगैरह वगैरह, उनको नॉमिनी नहीं बना सकते आप। नॉमिनी खाली नेचुरल पर्सन को बना सकते हो। नॉन लीगल हायर और ए नॉन रिलेटिव कैन बी नॉमिनेटेड। ए माइनर, a mentally or physically disabled person can be nominated, provided there is a proper delegated legal representative or a legal guardian. A local pan wala, a local bhaji wala, local दूध wala can be nominated. An unknown but existing alive person can be nominated. You cannot nominate a person who has deceased. And non-Indian citizens cannot be nominated. A nominee cannot nominate himself or anybody. I have already explained to you the step-by-step procedure कि आपको कैसे करना है वगैरह करके। सोसाइटी का काम है कि शेयर सर्टिफिकेट पे नाम लिखने के बाद में ब्रैकेट में नॉमिनी लिखना है। आई रजिस्टर में भी सेम टू सेम एंट्री करनी है, और वो ये ध्यान रखना है क्योंकि आप हमेशा कमेटी में नहीं बने रहोगे। इसके लिए ये प्रोसीजर लेना जरूरी है ताकि कभी भी नेक्स्ट मैनेजिंग कमेटी आती है 5 साल के बाद में, 10 साल के बाद में, 20 साल के बाद में, तो दैट न्यू मैनेजिंग कमेटी शुड नो कि देयर इज दिस, जो अनिल शर्मा लिखा हुआ है वो टाइटल ओनर नहीं है। हम हमेशा नॉर्मली यही प्रिज्यूम करते हैं, सोचते हैं कि शेयर सर्टिफिकेट पे नाम लिखा है अनिल शर्मा,
तो वही मकान का मालिक है। टिपिकली हर सोसाइटी में ये गलतियां होती है। लेकिन अगर आप उसके ब्रैकेट में अगर आपने नॉमिनी लिख दिया हुआ है तो ये साबित हो जाता है कि ये नॉमिनी है और इसको टाइटल ओनर राइट नहीं है। तुरंत उसका फाइल देखा जाएगा, तुरंत वो नॉमिनेशन रजिस्टर देखा जाएगा जहाँ पे वो सारा डिटेल्स दर्ज है। तुरंत वो नॉमिनेशन फॉर्म भी देखा जाएगा जो उसके इंडिविजुअल फाइल में या नॉमिनेशन फाइल में दर्ज है। ठीक है, आई हैव मोस्टली कवर्ड एवरीथिंग। वी कैन टेक अप क्वेश्चंस। अगर आपको, आई विल जस्ट एक्सप्लेन टू यू द प्रोसेस ऑल्सो। मैनेजिंग कमिटी का प्रोसेस वगैरह मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इंडेमनिटी बॉन्ड वगैरह का। आई थिंक आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ इट। इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस जस्ट लेट मी नो प्लीज। मिस्टर विक्रांत जिंदल सर, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर, जरा इसमें प्रॉब्लम था, मैं सुन नहीं सका। माय क्वेश्चन है कि अगर ये प्रोविंशियल मेंबर किसी आउटसाइडर को बनाते हैं एंड अगर ये मेंबर की डेथ हो जाती है और फैमिली में थोड़ा सा जिंदल साहब, थोड़ा सा जोर से बोलिए प्लीज। सर, अगर थोड़ा सा फैमिली मेंबर की डेथ हो जाती है और कोई आउटसाइडर नॉमिनेशन बन गया है, वो प्रोविंशियल मेंबर की अप्लाई करता है, लेकिन घर में ऑलरेडी लीगल है, यूज कर रहे हैं फ्लैट, जैसे वाइफ या चिल्ड्रन, तो कैन द प्रोविंशियल मेंबर आस्क द लीगल हेड टू वेकेट द फ्लैट, और कैन द सोसाइटी स्टिल मेक हिम द प्रोविंशियल मेंबर एंड आउटसाइडर? ये आपने कहा था, दैट इज द ये आपने कहा था जिंदल साहब, दैट इज द फन ऑफ बीइंग ए मेंबर एंड बीइंग ए टाइटल ओनर, है ना। अभी मेंबर क्या है, वो सिर्फ सोसाइटी का मेंबर है वो, और टाइटल ओनर तो कवर्ड है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर में। मालिक तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जिसका नाम दर्ज है वो मालिक है, और सिर्फ उसी को रहने का अधिकार है। अनलेस एंड अनटिल आप ये कहेंगे कि मैंने फ्लैट को लीव एंड लाइसेंस पे दे दिया हुआ है वगैरह वगैरह। तो अगर ऐसे केस में होता है तो कई बार ऐसा होता है कि आदमी अपने परिवार वाले से किसी कारणवश दुखी हो गया है या नाराज हो गया हुआ है, तो वसीयत भी दूसरे के नाम पे बना देता है। जैसे कि आपको एक फेमस केस मालूम होगा लोधा फैमिली का, कलकत्ता वाले का, कि वो मैडम ने अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को वसीयत बना दी, करोड़ों रुपए की, अरबों खरबों की प्रॉपर्टी थी, तो वो लीगल हायर डिस्प्यूट क्रिएट करके बैठे हुए। तो इसी तरह जब लीगल हायर को ये पता चलता है कि नॉमिनी तो वो पान वाले को बना के गया हुआ है, तो उसको तुरंत का तुरंत कोर्ट से ऑर्डर लेके पहले तो एक लीगल नोटिस देना है सोसाइटी को, और फिर कोर्ट से ऑर्डर लेके प्रॉपर्टी पे क्लेम फाइल करना। दिस इज नेसेसरी। और वैसे भी प्रोविजनल मेंबर इज ओनली ऑफ द सोसाइटी, उसको फ्लैट में रहने का अधिकार एक्ट के अंदर नहीं दर्शाया, इट इज नॉट रिफ्लेक्टेड एनीवे, एंड द वर्ड इटसेल्फ इज प्रोविजनल। कई बार क्या होता है कि जो लीगल हायर है उसी को नॉमिनी बनाया जाता है, तो फिर भी सोसाइटी उसको सिर्फ और सिर्फ प्रोविजनल मेंबर ही बना सकती है। अगर वो लीगल हायर है, सोसाइटी के मेंबर, सोसाइटी को ये पता है कि भाई ये उसका लड़का है, सोसाइटी को पता है ये चीज, क्योंकि वो 20-25 साल से वहां पे रह रहा है, तो हम लोग ये प्रिज्यूम कर लेते हैं कि यही उसका लड़का है। लेकिन ऐसे समय पे प्रॉपर्टी के मामले में एक समय के बाद में ये षड्यंत्र पता चलता है, कॉन्स्पिरेसी पता चलती है, प्लॉट पता चलता है कि जो लड़का है वो एक्चुअली उसका लड़का नहीं है ना। वो तो उसके मामा का लड़का आके रह रहा है साथ में, ये उनको अपना बेटा बेटा बोल के रखे हुए हैं, और हम लोग सारे जन उसका बेटा बेटा ही भाई उसी का लड़का है करके। लेकिन जब ये प्रॉपर्टी का बंटवारे की बात आती है, प्रॉपर्टी की क्लेम की बात आती है, तो सारे लीगल हायर एक साथ जाग खड़े होते हैं। मैं आपको एक बहुत सिंपल उदाहरण देता हूँ, क्योंकि मैं मोस्टली प्रॉपर्टी मैटर्स में डील करता हूँ। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ जो मेरे एक क्लाइंट के साथ में डील हुआ, कि मेरे एक क्लाइंट का एक प्लॉट था जमीन, तो जब उसने लिया 20 बरस पहले लिया, अपना जो भी करना धरना था उसने किया,
और उसने देखा कि 20 बरस से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ और बगल का जो प्लॉट है उसमें कोई बंदा आया नहीं, कोई इंसान आया नहीं, देखने भी नहीं आया, पूछने भी नहीं आया, कुछ भी करने नहीं आया। उसने आसपास पता लगाया कि भाई प्लॉट किसका है। तलाटी के ऑफिस में गया, रेवेन्यू ऑफिसर के पास में, विलेज रेवेन्यू ऑफिसर। उसको बोला कि भाई ये प्लॉट है, ये किसका है, मेरे को इसका 7/12 दे दो। तलाटी ने बोला ठीक है, ले दे के 7/12 भी दे दिया उसको। वो लेके आ गया, बोलता अरे ये प्लॉट तो अनिल शर्मा के नाम पे। अनिल शर्मा तो आया नहीं। उसके मन में ऐसा आया कि मैं इस प्लॉट को हड़प लेता हूँ, क्योंकि इतने साल से तो कोई क्लेम करने आया नहीं, अब क्या आएगा, और जब आएगा तो मैं डिस्प्यूट क्रिएट कर दूंगा कि मेरे पास तो ये इतने सालों से कब्जा है। अब उसमें फनी चीज क्या हुई, और ये रेगुलर है, इट इज अ यूजुअल थिंग, कि उसने कंपाउंड लगाया, कंपाउंड खत्म होते ही अनिल शर्मा सामने आ गया। अनिल शर्मा बड़ा कैपिटलिस्ट है, उसको परवाह नहीं, कहीं कहीं प्रॉपर्टी पड़ी हुई है। लेकिन ऐसे मौके पे जादू से पता चल जाता है कि भाई मेरी प्रॉपर्टी में एनक्रोचमेंट हुआ है। गांव के लोग बोल देते हैं, दोस्त बोल देते हैं, छोटे मोटे रिश्ते होंगे अगल बगल में, वो बोल देते हैं। और फिर वो आके बोलता है कि भाई तुमने मेरे प्रॉपर्टी पे कब्जा कैसे किया हुआ है। अब वो कंपाउंड तो लग गया। कंपाउंड लगने का मतलब उसने ट्रेसपासिंग कर दिया हुआ है, क्रिमिनल ऑफेंस कर दिया हुआ है। गॉट इट। तो ये कॉन्स्पिरेसी बहुत सालों के बाद पता चलता है कि हकीकत में वारिसदार कौन है। ऐसे ऐसे समय पे डिस्प्यूट्स कैसे सेटल करने का, ये बोलने का कि जाओ भाई कोर्ट जाओ और वहां से ऑर्डर लेकर आओ, और फिर वो कोर्ट के ऊपर छोड़ दिया जाता है कि वो कैसे डिसाइड किया जाता है। एक बार कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है तो कम से कम सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी को क्रिमिनल लाइबिलिटी या सिविल लाइबिलिटी तो नहीं खड़ी होती है वहां पे, वो तो सेफ हो जाते हैं, दे गेट एब्सॉल्व्ड ऑफ एनी लीगल एक्शन ऑन द सोसाइटी। इसीलिए मैंने कहा कि नॉमिनी से भी जब आप लोगे तो वो जो बायलॉ का नॉमिनेशन फॉर्म है उसको साइड में रख दो, और मेक ए प्रॉपर नॉमिनेशन फॉर्म ऑन ए 500 रुपीज स्टैम्प पेपर। बायलॉ में जो 200 रुपए लिखा हुआ है इंडेमनिटी बॉन्ड के लिए, वो नल एंड वाइड हो चुका है। तो इंडेमनिटी बॉन्ड हैज टू बी 500 रुपीज स्टैम्प पेपर if the local SRO is agreeing to register it. Otherwise, you go to a notary and tell him, sir, ये indemnity bond मुझे execute करना है, I want to have it registered in your notary's register number. वो लाके दे दो, और उस indemnity bond में आपको ये पक्का ही लिखना है कि मैं नॉमिनी हूँ, मैं इसका रिश्तेदार हूँ या नहीं हूँ, मैं प्रोविजनल मेंबर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। रिमेंबर, मैं प्रोविजनल मेंबर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, और मैं फ्लैट को बेचूंगा नहीं, गिफ्ट नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, वगैरह वगैरह वगैरह, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। और जब ये सारे क्लॉजेस आ जाते हैं तब मैनेजिंग कमेटी बोलती है कि भाई हमने इस इंडेमनिटी बॉन्ड के बेस पे फाइल किया है। इफ द मैनेजिंग कमेटी वांट्स टू बी ओवर कॉशियस, ज्यादा संभाल के काम करना, तो न्यूज़पेपर नोटिस में दे दो। हेलो 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 मिस्टर अनूप कुमार, प्लीज गो अहेड। सर, वेदर प्रोविजनल मेंबर और जॉइंट मेंबर में अभी कुछ वो सेम है या कुछ अलग अलग है? जॉइंट मेंबर का मतलब है प्रॉपर्टी पे उसका जॉइंट हिस्सा है, ठीक है? अच्छा, एग्रीमेंट में नहीं है तो वो जॉइंट मेंबर नहीं होगा? नहीं सर। तो नहीं, जैसे मेरे बेटे का फ्लैट है, उसमें मेरा एग्रीमेंट में नाम नहीं है, तो मैं जॉइंट मेंबर नहीं बन सकता, मैं प्रोविजनल मेंबर बन सकता हूँ मतलब? प्रोविजनल मेंबर तो तब बनता है आदमी जब जो मकान मालिक है वो नहीं रहता, गुजर जाता है, ओके, तब जाके उसका जो नॉमिनी है तब जाके वो प्रोविजनल मेंबर बनता है। और जॉइंट मेंबर बनना है तो जो ओरिजिनल मेंबर है उसको अपना कुछ हिस्सा आपको गिफ्ट करोगे, तब जाके आप साथ में उतने हिस्से का जॉइंट ओनर बनते हो। और जॉइंट ओनर बन गए तो सोसाइटी में अर्जी देके आप जॉइंट मेंबर बन सकते हो। नहीं तो मेरे केस में क्या होगा? बेटे का फ्लैट है,
तो Okay. उसमें मैं ज्वाइन अगर आपने बताया कि एग्रीमेंट में नाम तो नहीं है मेरा, तो मैं प्रोविजनल बन सकता हूँ मतलब? सर आप प्रोविजनल कैसे बनेंगे? मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि अगर एक आदमी का फ्लैट है, हम्म। उसके गुजरने के बाद ही उसका नॉमिनी प्रोविजनल मेंबर बनता है। ठीक है, वो तो ज्वाइंट मेंबर नहीं नॉमिनेशन, बनता। तो नॉमिनी बन सकता हूँ मतलब मैं? मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि आप हम्म। आपका जो लड़का है आपको नॉमिनी बना सकता है। ओके। हाँ? और लड़का किसी कारणवश नहीं रहता है तो ही आप प्रोविजनल मेंबर बनोगे। तब तक आप सोसाइटी के मेंबर नहीं, ना तो ज्वाइंट मेंबर बन सकते हो, ना तो हम्म। प्रोविजनल मेंबर बन सकते हो। ठीक है ओके, ठीक है। मिस्टर सरकार। यस सर, गुड इवनिंग सर। आपने बताया कि एनआरआई को नॉमिनी नहीं बना सकते, इज इट, एम आई हर्ड करेक्टली थोड़ा सा कि जोर से बोलिए सर, थोड़ा सा जोर से बोलिए, हाँ आपकी नॉमिनी, आवाज लाइट। हाँ एनआरआई को अब नहीं बना सकते हैं नॉमिनी, नॉन रेसिडेंट इंडियन। एनआरआई का फुल फॉर्म क्या है? आई थिंक इट इज नॉन रेसिडेंट इंडियन। यस। सो ही इज अल्टीमेटली एन इंडियन। ओके। वो भले बाहर रह रहा है, हम्म। इसके लिए उसको एनआरआई बुलाया जाता है। जी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो यूएस का सिटीजन हो गया। राइट। ठीक है, हम्म। अगर वो एक आदमी यूएस का सिटीजन हो गया हुआ है हम्म। लेकिन इंडियन ओरिजिन का है, जी। लेकिन उसके पास में ओसीआई, एक ओसीआई का नया पासपोर्ट मिलता है, जी। सर्टिफिकेट मिलता है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब ही राइट। इज a US citizen, हम्म। but he was the roots were of India, so he becomes an OCI. So such OCI person can be nominated. But if he ओके। does not have an OCI, हम्म। but if he is a US citizen हम्म। or any foreign country citizen, then he cannot be nominated. ओके सर, आफ्टर सर, नॉमिनेशन Wait, I'm क्या था? speaking to somebody. Just wait, please. Mr. नॉमिनेशन, Sarkar, any other यस यस, question? हाँ नॉमिनेशन जब किया था दैट टाइम हिज सन वाज इंडियन 20 years बैक। अभी धीरे धीरे वो लड़का चला गया यूएसए में, वहां में उसका सिटीजनशिप मिल गया। Yes. अभी ओरिजिनल मेंबर का डेथ हो गया। ऑन द Okay. बेसिस ऑफ दैट नॉमिनेशन, दैट यूएस सिटीजन जो कि उसका ब्लड रिलेशन वाला लड़का है, आके प्रोविजनल मेंबरशिप के लिए एप्लीकेशन कर रहा है सोसाइटी। तो सोसाइटी इस समय क्या करेगी? उसके पास ओसीआई नहीं है। तो OCI का प्रोसेस बहुत सिंपल है। ओके। इट इज नॉट ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग। मेरे ख्याल से शायद 2 महीने का प्रोसेस भी नहीं है, तो आप उसको अप्लाई कर सकते हो। और दूसरा, वैसे भी प्रोविजनल मेंबर का जो सेक्शन है, मेरे ख्याल से सेक्शन कौन सा है मोरे साहब, कुछ पता है आपको? सेक्शन नंबर 154B18 है क्या? आई थिंक इट इज 154B18 है। उसमें सब सेक्शन 2 में ये लिखा हुआ है कि अगर मैनेजिंग कमेटी को ऐसा लगता है, देखो बड़ा फनी सेक्शन है, उसमें ऐसा लगता है, नॉमिनेशन नहीं है किसी का भी, ठीक है, लेकिन उस पर्टिकुलर सेक्शन में ऐसा लिखा हुआ है कि मैनेजिंग कमेटी का डिस्क्रिशन है। मैनेजिंग कमेटी का डिस्क्रिशन मीन्स मनमानी, जिसको एक साधारण शब्द में ले लो, तो उसमें ये लिखा है कि अगर मैनेजिंग कमेटी को ये लगता है कि भाई वो राकेश को नॉमिनी बना देते हैं हम, तो मैनेजिंग कमेटी को वो अधिकार दिया है कि राकेश को नॉमिनी बना दे, प्रोवाइडेड कोई लीगल आयर सामने नहीं आता, प्रोवाइडेड कोई नॉमिनेशन फॉर्म सोसाइटी के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। ओके। तो आपके लिए तो मैं यही कह सकता हूं कि उस लड़के को बोलो अप्लाई कर दे। उसके पास में उसका बर्थ सर्टिफिकेट होगा, पहले का पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह, कुछ भी डॉक्यूमेंट होगा, उस बेसिस पे अप्लाई कर दे। ही विल स्टिल बी एलिजिबल। एंड व्हेन एट ऑल देयर इज ए डिस्प्यूट, सोसाइटी बोलती है नहीं नहीं हम ये नहीं कर सकते बिकॉज आप इंडियन सिटीजन नहीं है, आप प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर सकते यहाँ पे, तो बोले को वो अंडरटेकिंग दे देगा कि भाई ठीक है मैं ओसीआई के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तब तक ये मेरा एप्लीकेशन होल्ड पे रखा जाए। ठीक है सर। So it can be done, sir. There are technicality strategic steps you can take, and it can be done. ओके सर, एंड ऑलरेडी But I would always suggest कि अगर आप एक इंडियन सिटीजन है और आप किसी कारण ओरिजिनली इंडियन सिटीजन है,
इंडियन बर्थ सर्टिफिकेट है और किसी कारणवश आपने अब्रॉड का सिटीजनशिप ले लिया हुआ है, देन यू शुड ऑलवेज मेक ए पॉइंट कि ओसीआई भी लेके रखो। उसके कई बेनिफिट्स हैं, फंड ट्रांसफर के भी बेनिफिट्स हैं, ओके है ना, फॉरेन एक्सचेंज के रेगुलेशंस वगैरह में भी बेनिफिट है। देयर आर सो मेनी थिंग्स एक्चुअली। सर, ये विल प्रोबेट करने के लिए कुछ टाइम फ्रेम है? मिस 3 साल 4 साल ऐसा कुछ है कि कभी भी प्रोबेट हो एक सकता है? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था बीच में, आपने जो पॉइंट निकाला वो, कि भाई वसीयत आ गई है और इतने समय हो गया, आपने 20 साल हो गया, 30 साल हो गया, तो आपने विल को प्रोबेट क्यों नहीं किया हुआ है। तो जी, सुप्रीम कोर्ट ने ये एक गाइडलाइन सेट किया कि भाई 30 वर्ष तक वो विल को आप प्रोबेट कर सकते हो, 30 पर इयर्स। 30 ईयर्स। पर ओके, सक्सेशन एक्ट में इसका वर्णन नहीं लिखा हुआ है कि कितने साल कर सकते हो, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट वो यूज किया जाता है ये सारे कामों के लिए। ओके सर, ओके सर, थैंक यू, बट थैंक देयर विल बी कॉम्प्लिकेशंस इफ यू प्रोबेट एंड डिलेड विल, क्योंकि अब क्या हो रहा है कोविड के बाद में, टेस्टामेंट्री डिवीजन जो है कोर्टों का, वो बोलती है कि भाई विटनेस लेकर आओ यहाँ पर एफर्मेशन के लिए। हम्म, अब वो विटनेस है नहीं है उस जगह पे, विटनेस भी निकल गए, तो डॉक्यूमेंटेशन काफी हद तक बढ़ जाता है। ओके, ओके, और उस 30 साल में ओरिजिनल विल भी हो जाता है, सामने आ जाता है, और वैसे ही 10 और ओरिजिनल विल भी सामने आने की संभावना बनी रहती है। अच्छा, तो बुद्धिमानी यही है, आदमी गुजरा, भले हमें बेशरम क्यों ना बोला जाए, लेकिन अपने अपने जिसकी प्रॉपर्टी है हमारे परिवार वालों के, परिवार के बीच में ही रहना चाहिए, और कोई आके हाथ मार के ना ले जाए, ये ध्यान रखना चाहिए। जी, ठीक है सर, थैंक यू। ओके, पटेल। यस सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जहाँ पे जॉइंट मेंबरशिप है, सपोज फर्स्ट ओनर जो है उसने नॉमिनेशन भरा है, तो सेकंड जो जॉइंट ओनर है उसे भी नॉमिनेशन फॉर्म अलग से देना पड़ेगा या जॉइंटली दे कैन नॉमिनेट? एक नॉमिनेशन फॉर्म एक आदमी, ठीक है। अगर अनिल भाई ने, अनिल और सुनीता, सीक्वेंस गड़बड़ हो गया, अगर अनिल अनिल शर्मा फ्लैट ओनर है और अनीता शर्मा भी फ्लैट ओनर है, तो हाँ, अनिल शर्मा को अलग से अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरना है। उसके हिसाब से, उसके चॉइस के हिसाब से वो अपना नॉमिनीज किसी को भी चुन सकता है, वो अपने बीवी अनीता को भी चुन सकता है, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। ओके, पर अपना अपना हक अपने अपने नॉमिनेशन फॉर्म में रिकॉर्ड करना है। सेम टू सेम एप्लीकेबल फॉर अनीता's नॉमिनेशन फॉर्म ऑल्सो। क्योंकि अगर आप ज्वाइंट नॉमिनेशन फॉर्म भरते हो, जो हमेशा से गलती करते आ रहे हैं सोसाइटी वाले, अगर आप ज्वाइंट नॉमिनेशन फॉर्म करते हो तो ज्वाइंट नॉमिनेशन फॉर्म तब तक एक्टिवेट नहीं कर पाओगे आप जब तक दोनों नहीं गुजर जाते। अच्छा, इसलिए अलग अलग करना दैट्स अ बेटर ऑप्शन, और दैट यस, इज हाउ सोसाइटी शुड एक्सेप्ट। यस, एंड व्हाट हैपेंस इज कि अनिल शर्मा में नॉमिनेट हिज ओन रिलेटिव, his own friends, his business circle, anybody. Similarly, Anita may nominate her own relatives, her parental side relatives or whatever. Everybody is entitled. नॉमिनी आप किसी को भी बना सकते हो, देर इज नो रिस्ट्रिक्शन, बंदिश नहीं है कि आप अपने खाली वारिसदार को ही नॉमिनी बना सकते हो। अभी तक और कानून में ऐसे कोई बंदिश नहीं दिया हुआ। सर समझिए प्रोविजनल मेंबर ने जो नॉमिनी था उसने प्रोसीजर कंप्लीट की, एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई, लेकिन फिर भी कोई लीगल हेयर सामने अगर नहीं आया तो इन दैट केस वन मोमेंट, हाँ बोलिए मैम, हेमा पटेल बोलिए। हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि समझो अनिल शर्मा ने सपोज किसी को नॉमिनेट किया, आफ्टर डेथ ऑफ अनिल शर्मा जिसको भी नॉमिनेट किया था अनिल शर्मा ने, वो सब फॉर्मेलिटी प्रोविजनल मेंबर का कंप्लीट करता है, और समझो सोसाइटी भी एक्सेप्ट कर लेती है प्रोविजनल मेंबर को, तो अगर
वो केस में अनिल शर्मा का अगर कोई भी दूसरा लीगल हेयर अगर सामने नहीं आता है तो क्या सोसाइटी उनको ही एज अ मेंबर फिर काउंट कर लेती है या कैसा होता है वो केस में? अनिल शर्मा ने जो नॉमिनेशन फॉर्म भरा भरा सुरेश भाई के नाम पे, जी। ठीक है, सुरेश भाई कोई भी हो सकता है, हम्म। रिश्तेदार भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकता है, पड़ोसी भी हो सकता है, या दिल्ली का कोई रहने वाला भी हो सकता है। जी। तो सुरेश को अगर प्रोविजनल मेंबरशिप ग्रांट किया है सोसाइटी नॉमिनेशन फॉर्म के बेस पे, जी। तो जब तक कोई वारिसदार कोर्ट से डिग्री नहीं लेके आ जाता है, डिग्री जी। का मतलब ये एलए, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, राइट, राइट। या प्रोबेट, या। या और कोई भी कोर्ट का ऑर्डर, तब तक उस फ्लैट पे उस सुरेश परमानेंटली प्रोविजनल मेंबर बना रहेगा। ओके। और जब लेकिन कभी ही कोई लीगल जब कभी कोई लीगल वारिसदार आता है, तो जी। वो अपना लीगल प्रोसीजर करेगा सक्सेशन एक्ट के हिसाब से, जैसे मैंने बताया अभी, एलए का कर जी। ले या प्रोबेट का कर ले वगैरह वगैरह, और वो आगे बढ़ सकता है उस चीज में। ओके। थैंक और यू मैडम। सर, मेरा और एक क्वेश्चन था। आई डोंट नो अगर ये सेशन में चलेगा क्या नहीं। आज सपोज के रिलेटेड ही है लाइक, तो ही पूछिए मैडम। जी जी, रिलेटेड ही है। कैसा ठीक है, है। सोसाइटी ने जैसे प्रोसीजर रहता है वैसे नॉमिनेशन फॉर्म ही एक्सेप्ट नहीं किए सबके, जो कि अपफ्रंटली मांगने चाहिए। तो ऐसे केस में अगर मेंबर की डेथ हो जाती है और उनके लीगल हेयर सामने आते हैं कि भाई, क्योंकि जितने भी लीगल हेयर्स है उन लोग ही सामने आ रहे हैं कि सबके, हमारे समझो चार है, समझो लीगल हेयर, तो हमारे चारों के नाम पे कर दो, तो इज इट पॉसिबल सर? सेक्शन में तो ये प्रोविजन है कि अगर नॉमिनेशन फॉर्म नहीं है, जी। जैसे मैंने मिस्टर सरकार को ये बताया कि एक्ट में बड़ा फनी प्रोविजन दिया हुआ है कि मैनेजिंग कमेटी को डिस्क्रिप्शन दे दिया है कि अगर नॉमिनेशन फॉर्म नहीं भरा हुआ है आपने, जी। और सोसाइटी को ये लगता है कि भाई ये इसके चारों लीगल हायर हैं, बरसों से रह जी। रहे हैं, सोसाइटी सब आपस में जान पहचान है वगैरह वगैरह सब कुछ है, तो जी। सोसाइटी जी। उन लोगों को प्रोविजनल मेंबरशिप ग्रांट कर सकती है, सिर्फ और सिर्फ प्रोविजनल मेंबरशिप। प्रोविजनल। ठीक है, अगर आप उसको फुल मेंबरशिप ग्रांट करते हो, रेगुलर मेंबरशिप, जी। तो वो गलत होगा, और सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी प्रोसिक्यूटेबल ऑफेंस कर रही होगी। तो मैंने लेक्चर में बताया कि वो नहीं होना चाहिए। ड्यू प्रोसेस ऑफ हम्म। लॉ, कानून की प्रतिक्रिया जो है उसको फॉलो करना कंपलसरी है, खास करके इमूवेबल प्रॉपर्टीज के लिए। सर लेकिन अगर लीगल हेयर पब्लिक नोटिस दे रहे हैं और एफिडेविट जैसे रिक्वायर्ड है वो सब भी प्रॉपर करके दे रहे हैं पब्लिक नोटिस के साथ, और समझो कोई एकाध लीगल हेयर के नाम पे रिलीज डीड भी कर रहे हैं, तो फिर दैट केस में कैसा होगा? अभी एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं कि अनिल शर्मा है। जी। अनिल शर्मा इज द सोल ओनर ऑफ द फ्लैट, अकेला राइट। मालिक है वो। उसकी एक बीवी जी। है हम्म। और उसके 4 बच्चे हैं, सब मिला के 6 जन का राइट। परिवार है। अनिल शर्मा ओके। गुजर गया, विल नहीं बनाया उसने, उसने हम्म। नॉमिनेशन भी नहीं बनाया। जी। एक एक सिनारियो ये हुआ। दूसरा सिनारियो ये हुआ कि विल भी बनाया हुआ है जी। और नॉमिनेशन फॉर्म भी बनाया हुआ है, जी। और अनिल शर्मा की मदर नहीं है, नहीं गुजर गुजर चुकी है। जी। अभी हिंदू है अगर, तो हिंदू सक्सेशन एक्ट में कैसा है कि उसमें क्लास दिए हुए लीगल हायर्स के, क्लास 1, राइट क्लास सर। 2, क्लास 3 वगैरह वगैरह। अब क्लास 1 में जो मुख्य जो चीज है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्लास 1 में लीगल हायर में मदर आती है, क्लास 1 लीगल हायर में मदर आती है। तो अनिल पटेल की मदर आ गई, अनिल भाई की जी। मदर आ गई, अनिल भाई की बीवी आ गई, और अनिल भाई के 4 बच्चे आ गए। अनिल भाई के बहन या भाई या चाचा मामा या वगैरह वगैरह वो क्लास 1 लीगल हायर में नहीं आते। जी। तो अगर ये जो बाकी जो अनिल भाई की मदर गुजर गई है, अनिल भाई की एक बीवी है, 4 बच्चे हैं, ये पांचों जो रेसिडुअल लीगल हायर है, बाकी बचे हुए लीगल क्लास 1 हायर है, जी। इनमें अगर आपस में सहमति है, सम्मति है,
सहमति जी। है, सम्मति नहीं, सहमति है, म्यूचुअल कंसेंट है, तो दे कैन एग्जीक्यूट ए रजिस्टर्ड रिलीज डीड for this ओके। flat amongst themselves, sharing हम्म। equal ratio, or they may release their rights to even a single person or to two persons or to whatever person they want to. But it has to be released among themselves only, and this can be done via a release deed. So release deed will be as equivalent. There are undertakings to be taken in the release deed कि मैं हम ही लीगल वारिस हैं इसके और कोई नहीं है, अगर हम गलत करेंगे तो हम क्रिमिनली लाइबल होंगे, हमारा रिलीज डीड कैंसिल हो जाएगा, फला ठिकाना वगैरह वगैरह वगैरह। जी जी। ठीक है, और तो ये सपोज रिलीज डीड की कॉपी आप सोसाइटी में दे के आप रेगुलर मेंबर बन सकते हो, ये और परफेक्टली और नॉर्मली पॉसिबल है। ए रजिस्टर्ड रिलीज डीड would be literally equivalent to a court decree. ओके सर, इन केस अगर किसी एक के नाम पे रिलीज नहीं कर रहे हैं और वो पांचों जन ही है क्लेम कर रहे हैं और पांचों जन मिलके सहमति दे रहे कि हाँ सबको इक्वली शेयर जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इन दैट केस क्या रजिस्टर करेंगे फिर? मैं आपका प्रश्न समझा नहीं, एक को नहीं दे रहे मतलब एक को हटा रहे हैं मीन सामने से समझो, ऐसा? हाँ अगर मीन समझो 5 लीगल हेयर है टोटल, तो 5 में से 4 जन किसी एक के नाम पे रिलीज कर रहे हैं, तो रिलीज डेट हम लोग एग्जीक्यूट करके रजिस्टर करके दे सकते हैं सोसाइटी को। यस यस सपोज पांचों ही क्लेम कर रहे हैं, तो रिलीज डेट तो वैलिड एग्रीमेंट नहीं रहेगा ना उसमें डीड, नहीं, क्योंकि परफेक्टली वैलिड पांचों ही रहेगा। बोल रहे हो कि हमारे नाम पे जा, तो फिर रिलीज डीड में आप प्रॉपर क्लॉजेस डाल के आप उसको इक्वल शेयर आप डिस्क्राइब कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड ए सेटलमेंट डीड, फैमिली सेटलमेंट डीड आप सेटलमेंट कर डीड सकते एग्जीक्यूट कर सकते हैं यानी। हो। यस यस तो रिलीज में तो हम रिलीज करवाते हैं, तो सेटलमेंट डीड विल बी द प्रॉपर एग्रीमेंट फॉर दैट, राइट? yes, it can be executed by mutual consent and joint signatures and compulsorily registered. महाराष्ट्र में इस समय स्टैम्प ड्यूटी 500 रुपए है और जी। रजिस्ट्रेशन 1000 रुपए है जी। फॉर रिलीज डीड विदाउट कंसिडरेशन। अगर उसमें लेना देना का Right. रकम है तो की बात है, और अगर लेना देना की रकम है तो नॉर्मल स्टैम्प ड्यूटी लगेगा उसके अंदर। जी। ओके, थैंक यू मैडम। ओके, थैंक यू सर। मोरे साहब, हेलो हेलो one moment, Mr. More is waking up, please. Mr. Shah, one moment, just hold on. मोरे साहब, सर, जैसे कि सरकार ने बताया था कि हमारे सोसाइटी में ऐसी केस हुए कि मैनेजिंग कमेटी ने मेंबर एक्सपायर हो गया, उसका एक ही लड़का था, वो ऑस्ट्रेलिया में है, तो वो आके अभी क्लेम कर रहा है कि मैं नॉमिनेशन में मेरा नाम है, मैं 40 साल से, आप 50 साल से मुझे देख रहे हो, तो मेरे नाम पे कर दो। तो मैनेजिंग कमेटी ने उसको बोला कि आप लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लेके आओ, तो वो बोला उसकी ज़रूरत क्या है, मेरा नॉमिनेशन में नाम है। तो किसी ने उसको एडवाइस किया कि आप डिप्टी रजिस्ट्रार के पास जाके आओ, तो डिप्टी रजिस्ट्रार ने डायरेक्शन लेटर दे दिया सोसाइटी को कि इसको मेंबर करके ले लो। तो इज इट पॉसिबल और it डिड ही can be रिक्वायर्ड? provisional membership. नो, बट दे आर सेइंग कि डायरेक्ट मेंबर कर रहे हैं। ऐसा है मोरे साहब कि it is a discretion of the society to grant membership. राइट। Okay, but that discretion can be overridden by a proper order from the registrar. राइट। But a registrar has got no authority to finalize anything relating to succession laws. राइट। ठीक है ना? अगर वो आदमी ऑस्ट्रेलिया वाला एप्लीकेशन देता है तो एप्लीकेशन किस चीज का देता है कि ये फ्लैट मेरे नाम पे ट्रांसफर करो या मेरे नाम पे मेंबरशिप ट्रांसफर करो, ये दो अलग मेंबरशिप अलग और चीजें सब हैं। दोनों दोनों सब ऑल द नहीं होएगा, थिंग्स। सब सोसाइटी के पास फ्लैट ट्रांसफर करने का तो अधिकार कभी होता ही नहीं है, और ना हो ही सकता है कभी भी। ओके। ओके, फ्लैट ट्रांसफर जो है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर सिर्फ और सिर्फ एक डीड के माध्यम से हो सकता है। DEED, सेल डीड हो, या गिफ्ट डीड हो, रिलीज डीड हो, सेटलमेंट डीड हो, या कोई कोर्ट की डिग्री हो, जैसे हम लोग लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बोल लो या प्रोबेट बोल लो, तो ये सब टाइटल ओनरशिप डॉक्यूमेंट बोला जाता है। टाइटल ओनरशिप डॉक्यूमेंट इज रिलेटिंग टू मालकाना हक, राइट। टाइटल ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी। राइट। सोसाइटी तो आपको सिर्फ मेंबरशिप दे रही है, मेंबरशिप की क्या कीमत है मोरे साहब? कुछ भी नहीं। 250 रुपया, राइट। 500 रुपया,
राइट। अगर मैं हूं, मैं तो ये बोलूंगा कि नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा मेंबरशिप, मेरे पास फ्लैट की चाबी है, मैं अपना रहते जाऊंगा, और सोसाइटी का मेंटेनेंस तुमको मिलता जाएगा टाइम पे। सोसाइटी का रोल तो है नहीं ये बोलने के लिए कि नहीं नहीं तुम उसके लड़के नहीं हो। मैनेजिंग कमेटी में मेंबर ऐसे नहीं है ना जिनको लीगल मालूम है, खाली एक ही लीगल है वहाँ पे जो चेयरमैन है, वो खाली इतना ही बोला सब कमेटी मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स को, इफ यू आर ब्रिंगिंग दिस प्रपोजल टू मी, प्लीज मेक नोट माय अपोजिशन फॉर दिस। Let us discuss this thing because you are a lawyer. I will still want to explain this thing to you. मैं आपसे एक दो प्रश्न पूछता हूँ पहले। क्या सोसाइटी को ये बोलने का अधिकार है कि तुम उसके लड़के हो, या तुम उसकी बीवी हो, या तुम उसके बच्चे हो, या मामा चाचा मामा भांजा हो? क्या सोसाइटी को ये अधिकार है? यस और नो? नहीं, नो। ठीक है। क्या डेप्यूटी रजिस्ट्रार को ये अधिकार है? वो क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी, रिमेंबर दैट। राइट। ही इज ए क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी, ही इज नॉट ए जज। राइट, बट उसका अथॉरिटी तो ऐसे नहीं है, उसको नहीं है। तो जब रजिस्ट्रार को अथॉरिटी नहीं है, जब सोसाइटी को अथॉरिटी नहीं है, तो ये दोनों ये कैसे बोल सकते हैं कि तुम उसके बीवी बच्चे हो या नहीं हो, या तुम नहीं हो, तुम ये करो, तुम वो करो? चलो ठीक है, ये सारा चीज को भी साइड में छोड़ दो। आदमी गुजर गया, घर में 2-3 बच्चे हैं, आपस में सहमति है या नहीं है, सोसाइटी के रिकॉर्ड में अनिल शर्मा का नाम मेंटेनेंस बिल में आ रहा है, उसके बीवी बच्चे उसका पेमेंट करे जा रहे हैं, रिजर्वेशन हो नहीं सकता है क्योंकि अनिल शर्मा को जिंदा रहना जरूरी है रिजर्वेशन लेटर, मेंबरशिप का रिजर्वेशन लेटर डालने से, और ये क्रम चला जा रहा है 20 साल तक। क्या सोसाइटी उनको ये फोर्स कर सकती है क्या, या रजिस्ट्रार उनको फोर्स कर सकता है क्या? नहीं, तुम प्रोविजनल मेंबर के लिए अप्लाई करो, या तो कोर्ट से एलए लेके आओ, तो ही तुम्हारा मेंबरशिप तुम्हारे नाम पे ट्रांसफर करेंगे। मैं बोलता हूँ कि मुझे तुम्हारा मेंबरशिप नहीं चाहिए। अब क्या होता है, अनिल शर्मा की बीवी या बच्चे बोलते हैं मुझे तुम्हारा मेंबरशिप नहीं चाहिए, तुम्हारा सोसाइटी का मेंबरशिप नहीं चाहिए। क्या तुम मेरे को इस फ्लैट से बाहर निकाल सकते हो? तुम्हारा अधिकार है क्या उस चीज का? नहीं है। मैनेजिंग जब तक उसको सोसाइटी का ड्यूज मिल रहा है, राइट, सोसाइटी का अधिकार खत्म हो जाता है। डेप्यूटी रजिस्ट्रार का भी अधिकार खत्म हो जाता है। डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास में भी अधिकार नहीं है रजिस्ट्रार के पास में, कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार की बात कर रहा हूँ, ये बोलने के लिए कि तुम उसके लीगल हायर नहीं हो, वारिसदार नहीं हो, तो तुम खाली करो जगह। राइट, एब्सोल्युटली। लेकिन ये कोर्ट बोल सकती है, राइट, सिविल कोर्ट है ना, जहाँ पे सक्सेशन में मैटर चलेगा, या तो अपना हाई कोर्ट बोल सकती है। बट लेकिन वो डायरेक्शन दे रहा है कमेटी को कि इसको मेंबर करके एब्जॉर्ब कर लो, प्रोविजनल मेंबरशिप के लिए। प्रोविजनल दैट ही हैज नॉट मेंशन, दैट इज द फनी थिंग। ही इज सेइंग कि डायरेक्ट उसको मेंबर बना दो इन हिज फादर। अभी आपको एक और फनी चीज भी बता देता हूं मैं, कि सोसाइटी इस चीज पे ऑब्जेक्शन ले सकती है, क्योंकि सोसाइटी को परिवार का सक्सेशन एक्ट से लेना देना नहीं होता है। अगर रजिस्ट्रार ने लिख कर दिया है कि इसको मेंबर बना दो, तो वो मेंबर बना देगा। 154B18 सब सेक्शन 2 में लिखा हुआ है सोसाइटी का डिस्क्रिप्शन के बारे में, कि जिस किसी को भी चाहे वो मेंबरशिप नॉमिनी प्रोविजनल मेंबरशिप बना दे, तो वो डेप्यूटी रजिस्ट्रार का कंप्लायंस भी कर लेगा, ब्रैकेट में लिख देगा नॉमिनी, और आई रजिस्टर में भी लिख देगा नॉमिनी। तो डेप्यूटी रजिस्ट्रार का भी कंप्लायंस हो गया ऑर्डर का भी, और सोसाइटी भी सिक्योर हो गई। अगर वो ये पता चलता है बाद में कि ये अकेला वारिसदार नहीं है, और 3-4 और वारिसदार बैठे हुए हैं उसके, जैसे मैंने आपको बताया कि जादू से वारिसदार पैदा हो जाते हैं हकीकत में। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि भारतवर्ष में जो भी कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, 90% केसेस आर नॉट क्रिमिनल, they are all relating to immovable properties. Right. Yes, sir. Any other? No. Hello. Please. Hello. Yeah. Thank you, One sir. moment, Thank Mr. you. Shah. 1 minute, please. No, thank you, sir. Please take another. Okay. Thank you, Mr. Mora. Yes, Hello. Mr. Shah. Yes, sir. Hello, sir. Provisional member cannot make the nomination. A nomination can be made only and only by a title owner. But after the death of the original member, nominee become the provisional member. And after the death of the provisional member, what will be happen?
द प्रॉपर्टी विल गो टू द स्टेट। हिंदू सक्सेशन एक्ट में लिखा हुआ है साहब ये चीज। अगर कोई भी वारिसदार नहीं है, क्लेमेंट नहीं है, तो वो जो जागीर है, जो धन दौलत है, वो स्टेट गवर्नमेंट के कब्जे में चली जाती है। आपको एक उदाहरण देता हूँ कि कुछ साल पहले फिल्म एक्ट्रेस थी प्रवीण भाभी, हम्म। उसका हाँ। कोई भी वारिसदार नहीं आया उसके ओके। गुजरने पे। तो ओके। प्रॉपर्टी आज के दिन पे भी स्टेट गवर्नमेंट के ताबे में है। ओके। तो एसोसिएट मेंबर कैन मेक द नॉमिनेशन। एसोसिएट मेंबर इज ओनली ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्राइमरी मेंबर। ही कैन नॉट मेक। ओके, नो, ओनली द टाइटल ओनर जिसका नाम एग्रीमेंट में है, सेल डीड में, गिफ्ट डीड में, फला डिकाना डीड्स में है, उसको टाइटल ओनर बोलते हैं। ओके, देन एग्रीमेंट में दो नाम से प्रॉपर्टी है। हाँ जी। और फर्स्ट वाले ने नॉमिनेशन किया है और सेकंड नेम वाले ने नॉमिनेशन नहीं किया है, और फर्स्ट नेम वाला एक्सपायर्ड हो जाता है, तो फिर सेकंड की पोजीशन क्या होती है? सेकंड में उतना 50% का टाइटल ओनर बना हुआ है परमानेंटली, अच्छा, वो और जो रहेगा ही। फर्स्ट है उसका प्रोविजनल मेंबर आके सिर्फ मेंबरशिप राइट एक्सरसाइज कर पाएगा। हाँ। टाइटल ओनरशिप राइट एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा, वो प्रॉपर्टी को मॉर्गेज नहीं कर पाएगा, बिकॉज ही इज नॉट ए टाइटल ओनर। ओके। आपके और जानकारी के लिए, यू आर ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट स्टिल आई विल लाइक टू एक्सप्लेन वन थिंग फॉर आवर बेनिफिट ऑफ ऑल द मेंबर्स, कि एक टाइटल ओनर जब बनता है आदमी प्रॉपर्टी का, एक फ्लैट खरीदता है 100 रुपए का, हम्म। एक आदमी ने 100 रुपए का फ्लैट खरीदा, तो ओके। उसको साबित करने के लिए कोर्ट में क्या क्या चीज लगती है? एक तो वो रजिस्टर्ड सेल डीड लगता है, ओके। कोई भी डीड लगेगा। हाँ। और सेकेंडरी सपोर्टिंग एविडेंस में क्या होगा? उसका बैंक स्टेटमेंट होगा, जिसमें ये बोला जाता है कि भाई ये इस तरह से पेमेंट गया, भले वो 20 बरस पहले का ही क्यों ना हो। ओके। और तीसरा तीसरा उसका इनकम टैक्स रिटर्न होगा, हम्म। जहां पे ये प्रॉपर्टी हम्म। प्रॉपर्टी उसका क्लेम कर रहा है वो चीज, क्योंकि आगे पीछे जब भी वो बेचेगा हम्म। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स तो क्लेम करेगा। अगर आईटी रिटर्न में उसकी प्रॉपर्टी ही नहीं है वहां पे दिखाया हम्म। उसने, तो हम्म। एलटीसीजी कैसे क्लेम कर लेगा वो? लेकिन सेकंड ओनर ने कुछ भी पेमेंट दिया ही नहीं रहेगा, ही इज द ओनली नेम सेक के लिए ये है तो। इफ इट इज रिफ्लेक्टेड इन द एग्रीमेंट इन दैट रेशियो, ओके। then you can say. Otherwise, if the person has died and if it is in a Mia Bibi thing, husband and wife thing, then the law हाँ। will presume that both are the 50% owners. If it is not reflected in the agreement, then the law will say दोनों 50-50% के मालिक है। अभी 50 रुपया सब, इसका, 50 रुपया इसका, वैसा। और हस्बैंड के नाम पे फ्लैट है और उसने नॉमिनेशन उसके वाइफ के नाम पे किया 50% एंड उसके कजिन के नाम पे 50% किया, देन व्हाट? वाइफ जो है 50 रुपए की मालिक तो परमानेंटली बनी रहेगी, ओके। और जो उसके कजिन को जो नॉमिनी बनाया तो वो नॉमिनी बनी रहेगी हमेशा। और बाकी जो उसके वाइफ को भी अगर उसने नॉमिनी बनाया तो वो बाकी जो 50 रुपया का नॉमिनी बनाया, वो 50 रुपये हमेशा नॉमिनी के कैटेगरी में ही हमेशा बना रहेगा। वाइफ अपने आप उस 50-50 रुपए के नॉमिनी का लीगल हायर नहीं बन जाती है, वो नॉमिनी ही बनी रहेगी। इसीलिए कोर्ट का डिग्री लाना जरूरी है। लेकिन सोसाइटी बिल किसके नाम पे इश्यू करेगी? सोसाइटी बिल, अगर नॉमिनी फर्स्ट ओनर ओनर ने फर्स्ट नॉमिनी को दिया हुआ है, पहला ओनर गुजर गया हुआ है, तो पहले ओनर के जगह पे नाम नॉमिनी का आएगा, ओके। और सेकंड ओनर का नाम उसके बीवी का आएगा। नहीं, लेकिन फर्स्ट नेम वाले ने दो नॉमिनी बनाया हुआ है। बिल पे टिपिकली हर सोसाइटी फर्स्ट नेम ही डालती है। नहीं, लेकिन ए गुजर गया, मर गया, उसने नॉमिनी बी एंड सी को बनाया हुआ है, बी इज हिज वाइफ एंड सी इज हिज कजिन, तो सोसाइटी मेंटेनेंस बिल विल बी गोज टू द बी नेम और बोथ द नेम? Only a name. ये Unless तो and unless until the society is putting all the names in the bill, typically society does not put all the names in the bill, only the first names that appear in the I register. तो अभी नॉमिनी का नाम तो आई रजिस्टर में आएगा ही नहीं। नॉमिनी का नाम आई रजिस्टर में नहीं आएगा तो उसको प्रोविजनल मेंबर कैसे बनाओगे सर जी आप? ओके।
तो प्रोविजनल मेंबर तो 50-50 दोनों रहेंगे। तो प्रोविजनल मेंबर मेंबर में 50-50 या 25-25 नहीं होता है साहब। सोसाइटी के रिकॉर्ड में मेंबरशिप का परसेंटेज नहीं होता है। ओके, वो खाली एग्रीमेंट में आप लिख सकता है कि 50 रुपया का मालिक ये है। एक हस्बैंड तो है, ही इज एक्सपायर, 50 उसका वाइफ का नाम पे है, 50 उसके कजिन के नाम पे है। प्रॉपर्टी किसके नाम पे है? उसके हस्बैंड के नाम पे ही थी, वो एक्सपायर हो गया है। तो पूरा प्रॉपर्टी 100 रुपए की है, तो 100 रुपए हस्बैंड के नाम पे है। हाँ, सो पूरा प्रॉपर्टी 100% उसके हस्बैंड के नाम पे थी। अभी हस्बैंड एक्सपायर हो गया, उन्होंने नॉमिनेशन वाइफ को 50% बनाया और उसके कजिन को 50% बनाया। हाँ, तो दे बोथ विल रिमेन परमानेंटली नॉमिनीज ओनली, दे डोंट हैव एनी टाइटल ओनरशिप राइट। तो फ्लैट को तो कभी आई बेच नहीं रजिस्टर पाएंगे। और आई रजिस्टर आई रजिस्टर में दोनों नॉमिनी का नाम दर्ज होगा। दोनों का, हाँ जी, और बिल भी दोनों के नाम पे जाएगा। वो तो सोसाइटी की पॉलिसी है कि बिल में एक नाम डालती है सोसाइटी, कि चारों का चारों नाम डालती है, कि दसों का 10 नाम डालती है। इट डिपेंड्स ऑन द नहीं, सोसाइटी पॉलिसी। लेकिन दोनों जन इंसिस्ट कर रहे हैं कि हमारा दोनों का नाम आना चाहिए। वो उनका पर्सनल प्रॉब्लम है सर। वी आर टॉकिंग नॉट टॉकिंग अबाउट पर्सनल नहीं प्रॉब्लम्स यानी, ओवर हियर। ओके। ओके, एनीबडी एल्स हैज एनी क्वेश्चंस प्लीज? गौर साहब बोलिए। मिस्टर सत्यनारायण। Hemant sir, can you hear me? यस प्लीज गो अहेड। अच्छा सर, पिताजी की प्रॉपर्टी है हाउसिंग सोसाइटी में, इन्होंने 60-70 साल पहले ली हुई है, लेकिन उसका कोई सेल डीड नहीं है। लेकिन ये सोसाइटी का पावती है जो पैसा भरा हुआ है, और उनके नाम से म्युनिसिपैलिटी टैक्स जा रहा है, सब कुछ जा रहा है, और 60 से वो रह रहे हैं। और उन्होंने वो घर अपने बेटे के नाम पे विल में दे दिया है, और माताजी पिताजी ने मिल के विल बनाया, रजिस्टर्ड विल है। तो पिताजी गुजर गए, तो अभी वो घर लीगल ये करने के लिए क्या करना चाहिए? ओनरशिप विल के क्या लिए जॉइंट विल है क्या? जॉइंट विल है। अगर विल जॉइंट है, प्रॉपर्टी का टाइटल नहीं है और 30 बरस के ऊपर हो गया है, तो कोर्ट से डिग्री लेकर आ जाओ, विल को प्रोबेट करा लो। विल को प्रोबेट करने के लिए अभी एक आदमी ये है ना, दोनों अगर नहीं है तभी वो विल जाके प्रोबेट कर सकते हैं ना। और हम लोग सब रजिस्ट्रार के पास गए थे इंडेक्स 2 निकालने के लिए, तो उसने बोला विल में 2 आदमी है, दोनों जब नहीं रहेंगे तभी विल वैलिड रहेगा, अभी तो मैं इंडेक्स 2 नहीं दे सकता। जाके हमने कोशिश किया था सब रजिस्ट्रार को, तो सब रजिस्ट्रार ने बोला आप रजिस्टर्ड विल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब दोनों के नाम पे विल है तो तभी लेके आओ, ये विल दिखाओ, हम लोग इंडेक्स 2 आपके नाम से निकाल के दे देंगे। नहीं ये हो साहब, सकता है? ऐसे प्रोविजन ऐसा नहीं है। प्रोविजन ऐसा है कि मियाँ बीवी जॉइंट विल कर सकते हैं। मैं पर्सनली हाँ, एडवाइस नहीं करता हूँ किसी को कि जॉइंट विल करो, क्योंकि ये प्रॉब्लम आती है जो आपने बोला हुआ है। अगर बराबर। जॉइंट विल में से एक आदमी मर गया हुआ है और उस हम्म विल में उसका खुद का प्रॉपर्टी का रेशियो डिफाइंड है, हम्म उसका खुद का प्रॉपर्टी का रेशियो डिफाइंड है, और हम्म उसके खुद के प्रॉपर्टी के रेशियो का बेनिफिशियरी भी डिफाइंड है, हम्म और एग्जीक्यूटर भी डिफाइंड है, हम्म तो वो विल को एक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको कोर्ट का डिग्री लाना है। डायरेक्टली आप एसआरओ के पास में जाके ये काम नहीं कर पाओगे। अच्छा, कोर्ट का डिग्री लाना है, तो अगर उसमें अभी उन्होंने अभी 5 बेटे हैं, 5 बेटे में से एक को प्रॉपर्टी एक नाम, एक को एक प्रॉपर्टी दे दिया, एक को एक प्रॉपर्टी दे दिया, क्या डिग्री के लिए सब लोगों की रजामंदी चाहिए? विल अगर रजिस्टर्ड है तो हम्म रजामंदी नहीं चाहिए। लेकिन कोर्ट का प्रोसीजर के टाइम पे अगर ऑब्जेक्शंस आते हैं तो सबके हाँ, कंसेंट लेटर्स लगेंगे। कंसेंट लेटर अगर लग रहे हैं तो फिर विल, रजिस्टर्ड विल बनाने में क्या मतलब है फिर?
अगर डिस्प्यूट हुआ तो की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, कल अगर जाके है ना, मैं भी अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, मैं अपने रहते हुए गिफ्ट डीड या ये कोई भी अपना प्रॉपर्टी नहीं देना चाहता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे बाद है ना, मैं अपने बच्चों के नाम पे विल, रजिस्टर्ड विल करके जाऊं, ताकि कल को वो झगड़ा ना करे वो प्रॉपर्टी के ऊपर। लेकिन अगर मैं करके जाऊं और बाद में वो एक दूसरे की सहमति चाहिए, तो फिर प्रॉब्लम तो आते ही रहेंगे ना सर। फिर इसके लिए क्या करना चाहिए, प्रॉपर ना आए थे। विल बनाओ या ना बनाओ, हाँ। विल बनाओ या ना बनाओ, हम्म। डिस्प्यूट करने का राइट हाँ। लीगल हायर्स को हमेशा बना हुआ है। अच्छा। ठीक है, ओके ओके। मैं आपको रिपीट करता हूँ बाकी लोगों के बेनिफिट के लिए भी, कि आप विल हाँ। बनाओ, कोई भी विल बनाओ या ना बनाओ, हाँ। हाँ। लीगल हायर को डिस्प्यूट करने का राइट बना हुआ है। और जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि 90% केसेस इंडिया में प्रॉपर्टी को रिलेटेड ही है, और उसमें से एक यही चीज है जो अभी मैंने आपको बताया। विल बन जाती है, 4 वारिसदार हैं, विल अगर रजिस्टर्ड है तो जो बेनिफिशियरी है अपने एग्जीक्यूटर के माध्यम से विल को प्रोबेट करा सकता है। उस प्रोबेट प्रोसीडिंग्स में जब नोटिस निकलती है, पब्लिकेशन होता है कोर्ट के बोर्ड पे, और लीगल हाँ। हायर को पता चलता है कि भाई ये है, और उस लीगल हायर, उन लीगल हायर्स में से डिस्प्यूट क्रिएट करना है अगर किसी को, हाँ। ओके, तो हाँ। वो उस एप्लीकेशन में डिस्प्यूट क्रिएट करके विल का प्रोबेट का प्रोसीडिंग्स रोक दिया जाता है, और फिर वो एक सिविल सूट में कन्वर्ट होके रेगुलर हियरिंग में जाता है फिर वो चीज। अरे सर, अगर फिर आप ये ये तो बहुत। सोचेंगे कि मेरा विल बना हुआ है, मेरे बच्चे डिस्प्यूट नहीं करेंगे, हाँ। तो इसकी संभावना रिमोट है इंडिया में। अरे सर, फिर इसके लिए क्या आगे, अभी जो लोग हैं जिन्होंने प्रॉपर्टी कमाई, जो बच्चों को देना चाहते हैं, उनके लिए आपके पास क्या सुझाव है? ये प्रश्न आपका फिलोसफिकल है। नहीं, फिलोसॉफिकल नहीं सर, विल बना के भी प्रॉब्लम हो सकता है, या रहते रहते गिफ्ट डीड बना दिया जाए, ताकि वो प्रॉब्लम ना आ जाए। गिफ्ट डीड बनाएगा यस, तो भी प्रॉब्लम आ जाएगा। आप रहते रहते अगर आप प्रॉपर्टी के मालिक हो, हाँ। ठीक है, इफ यू आर द टाइटल ओनर ऑफ योर प्रॉपर्टी, करेक्ट। एंड सेकंड कंडीशन इज इट शुड नॉट बी एंसिस्ट्रल प्रॉपर्टी। करेक्ट करेक्ट, हमने कमाया हुआ होना चाहिए। हाँ, अगर आपका सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, आपके अकेले के नाम पे है या दुकेले के नाम पे है, तो हम्म। आप कंडीशनल गिफ्ट डीड अपने बच्चों को जिंदा रहते रहते बना सकते हो, और ओके। कंडीशनल गिफ्ट डीड में आप रेस्पेक्टिव क्लॉसेस डाल सकते हो कि ये प्रॉपर्टी का लेना बेचना फला ढिकाना मैं बाहर करता हूं जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक मैं जिंदा हूं मैं इस प्रॉपर्टी में यूसेज राइट्स कायम रहेगा मेरा, वगैरह वगैरह वगैरह। दे कैन पुट सो मेनी क्लॉजेस इन दैट। उसके बाद में आदमी जब गुजर जाता है तो उस गिफ्ट डीड के माध्यम से वो बाकी 4 जन टाइटल ओनर बन जाते इक्वल प्रोपोर्शंस में। अगर उन्होंने एज डोन, अभी समझो आप डोनर हो और वो हम्म। डोनी है, तो जब आप हम्म। गिफ्ट डीड रजिस्टर करने को जाओगे तो 5 जनों को आना है, ठीक है ना। नहीं 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 सर, यू आर द इसमें सर, यू आर द सोल डोनर एंड यू हैव नहीं सर गॉट 4 इसमें, चिल्ड्रन। हाँ, इसमें गड़बड़ है सर। इसमें मेरे पास 5 प्रॉपर्टी है, मैं चारों बच्चों को एक एक प्रॉपर्टी और कुछ देना चाहता हूँ, चारों बच्चों को अलग अलग, आगे जाके ये झगड़ा ना करे प्रॉपर्टी के ऊपर। लेकिन मेरे रहते मैं अपने इसमें भी रखना चाहता हूँ कि है ना, प्रॉपर्टी मेरे अंडर रहे, मेरे जाने के बाद ये छोटे बेटे को ये प्रॉपर्टी जाएगा, इसको मैं डिफाइन करके जाऊंगा, ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो जाए। गिफ्ट डीड हर एक के नाम पे बना दूंगा, तो वो गिफ्ट डीड पे जाके वो अपना रजिस्ट्री करा सकते हैं ना, या फिर इंडेक्स टू निकाल सकते हैं। इट इज एज गुड एज रजिस्ट्री ना, गिफ्ट डीड। आप कैसे देके जाना चाहोगे प्रॉपर्टी, विल के माध्यम से या गिफ्ट डीड के माध्यम से? गिफ्ट डीड मेरे को ज्यादा ठीक लग रहा है, क्योंकि विल करूंगा तो फिर वो चैलेंज प्रोबेट करना पड़ेगा, कोई चैलेंज करेगा तो फिर आपस में डिस्प्यूट करते रहेंगे। अभी इसमें एक ऐसा है कि अगर आप कंडीशनल गिफ्ट डीड बना के जाते हो अपने 5 हम्म। प्रॉपर्टी के लिए, हम्म। 5 बेटे के नाम पे बना के जाते हो उदाहरण के तौर पे, हम्म। ठीक है, अलग अलग है। तो हाँ, तो समझो आपका नाम अनिल है हम्म। और आपका बेटे का नाम सुरेश है, ओके। और आपके 3 और बेटे हैं, हम्म। तो आप हो गए डोनर हो गए, हम्म। और सुरेश हो गया डोनी। हम्म। तो दोनों का तो सिग्नेचर जरूरी है गिफ्ट डीड हम्म। में, कंडीशनल हम्म। गिफ्ट डीड में।
उसके नीचे आप और जोड़िए, उसके नीचे आप और जोड़िए उसी गिफ्ट डीड में क्लॉजेस डालिए गिफ्ट डीड के अंदर बीचों बीच कि मेरे तीन लड़के, दो लड़के, तीन लड़के और हैं, एंड दे आर बाय एग्री दैट दे विल नॉट क्रिएट ए डिस्प्यूट और क्लेम ऑन दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, और गिफ्ट डीड के अंत में दे मेक देम एज कंफर्मिंग, कंसेंटिंग एंड कंफर्मिंग parties number 1, son number 1, son number 2, son number 3. So in the same gift you can write consenting and confirming party, son number 1, and so on. But certain relevant clauses should be incorporated inside that conditional gift deed. So each gift deed will have signature of everybody. अच्छा 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 अच्छा। लेकिन सर ये तो मैंने कमाई हुई प्रॉपर्टी है ना, तो मैं अपने मर्जी से नहीं कर सकता क्या? बच्चों का इसमें रजामंदी लेना पड़ेगा क्या? इसको ये दूंगा तो प्रॉपर्टी आपकी कमाई हुई है, लेकिन जो कानून बना हुआ है वो आपने नहीं बनाया हुआ है। अच्छा, ओके, है ना, आप हिंदू हो, हिंदू सक्सेशन एक्ट आपने नहीं बनाया हुआ है, आपके प्रतिनिधि ने बनाया हुआ है, लेजिस्लेटिव प्रतिनिधि ने बनाया हुआ है। वो बोलते हैं कि आपके सब बच्चों को आपके सारी प्रॉपर्टी पे बराबर का हक है। और अब तो मजेदार चीज ये है कि भाई जो डॉटर मैरिड भी हो गई है, शादीशुदा भी हो गई है, चली गई है, तो भी उसका भी हक पैदा हो गया है। बराबर है, वो ठीक है करेक्ट ना? है, वो भी अभी है, सही बात। हाँ, तो कानून आपने नहीं बनाया, प्रॉपर्टी आपने बनाया है, लेकिन कानून बोलता है कि आपकी प्रॉपर्टी कानून के हिसाब से बांटी जाएगी, आपके मन मर्जी के हिसाब से नहीं बांटी जाएगी। ओके, गॉट इट। ओके, थैंक यू। बहुत लफड़ा है सर, बहुत लफड़ा है। कोई लफड़ा कुछ भी नहीं है सर जी इसके अंदर। आप एक प्रॉपर प्रॉपर्टी कमाया है, 4-5 प्रॉपर्टी कमाया है, एक उम्र के बाद में मेरी ऐसी सलाह होती है सीनियर सिटीजन्स को कि अपनी प्रॉपर्टी को कंसोलिडेट करना शुरू करो। हम अपने बचपन से, जवानी से लेके हम ये सोचते हैं मैं ये खरीद लूंगा, मैं वो खरीद लूंगा और ये कर लूंगा, और वो खरीद भी लेता है जोश जोश में। एक उम्र में आने के बाद में उसको लगता है मेरी इतनी प्रॉपर्टी हो गई, मैं मैनेज कैसे करूं, तो तकलीफें शुरू हो जाती है। तो एक समय के बाद में जैसे वक्त इवॉल्व होता है, वक्त बदली होता है, वैसे आप प्रॉपर्टी को भी बदली करिए, आप कंसोलिडेट करिए, और जब तक जिंदा है तब तक अपने वारिसदारों को 10 रुपए भी नहीं देना। नहीं, मैं अभी वही गड़बड़ है कि प्रॉपर्टीज बहुत बना के रखा हुआ है, लेकिन अभी ये सब सेशन के बाद लग रहा है कि ये बना के जाऊंगा, पीछे वालों को भी तकलीफ है और मेरे को भी तकलीफ हो जाएगा कि क्या कैसे होगा। बहुत ज्यादा सिंपल करना है, और बहुत ज्यादा सिंपल करना, और बच्चों के प्रति इतना ज्यादा लगाव नहीं है। और जैसे लॉर्ड कृष्ण ने, भगवान लॉर्ड कृष्ण ने ये बोला कि भाई आप बच्चों को तब तक देखो जब तक वो अपने पैर में खड़े नहीं हो जाते, बाकी वो अपना करते रहेंगे, उनका गॉडफादर बनने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो आप उनको अपाहिज बना दोगे। आप ये चीज समझ रहे हैं? अभी मेरे 4 बच्चे हैं, तो उसमें से एक 19 है, एक 20 है, तो मेरे को लगता है ना जो 19 वाला है उसको जरा ज्यादा सपोर्ट कर दूं, बाकी वाला तो ठीक है, उसका तो हो रहा है। वो सब गॉड फादरली सेंटिमेंट्स है सर। आप मेरे को अगर कानून के नजरिए से पूछोगे तो मैं आपको ये कहूंगा कि ये सब गॉड फादरली सेंटिमेंट्स, आप उसका गॉड फादर बनने की कोशिश कर रहे हैं, उसको भी अपना कमाई धमाई करने दो। अब ये सोचो कि कल 20 साल का है, वो तो मेजर हो गया, प्रॉपर्टी दे दिया आपने उसको किसी कारणवश, अभी बहुत ज्यादा लगा हुआ के प्रॉपर्टी दे दिया, ठीक है। आपने गौतम सिंघानिया का नाम सुना हुआ है सर? हाँ, रेमंड्स के मालिक सुना हुआ है। उनके लड़के का नाम पता है आपको? अच्छा सॉरी, उनके पिताजी का नाम पता है आपको? गौतम सिंघानिया के पिताजी का नाम पता है? मालूम है सर, सिंघानिया वही रेमंड्स वाला, तो उनके उन्होंने सब शेयर अपने बेटे को दे दिए, अभी बेघर। क्या किया उसके बेटे ने उसके साथ में, मालूम है आपको? बेघर हो गया अभी। तो यही चीज आप ये समझ के करिए, अपने साथ भी लागू हो सकता है। ओके, तो वो सेंटिमेंटल होना, इमोशनल होना ना, और वो भी इस उम्र में, वो बुद्धिमानी का काम नहीं है सर जी। अरे लेकिन कमाया किसके लिए? बच्चों के लिए तो कमाया है। डोनेट कर दो साहब, डोनेट कर दो। अरे डोनेट होता है क्या? बच्चों के लिए कमाया है, अपना खाएगा तो कुछ लगता नहीं, दूसरा खाएगा तो तकलीफ होता है। अगर इतना ही सोचना है तो बच्चों को आज दे दो प्रॉपर्टी,
आज दे दो यहाँ प्रॉपर्टी, दे दो तो गौतम सिंघानिया बन गए तो वो भी टेंशन है। एग्जैक्टली, आप दोनों तरफ से मत बोलिए ना, दैट इज ए हिपोक्रेटिक थॉट। नहीं नहीं, मेरे को क्या लगता है कि गिफ्ट डीड बनाओ, कंडीशनल गिफ्ट डीड बनाओ, और हर एक का है ना हिस्सा लेके ना बना के रखो, हर एक का साइन लेके रखो, भाई मैं इसको ये दे रहा हूँ, इसको ये दे रहा हूँ, नहीं तो सब दान कर दूंगा, अभी साइन कर दो, खत्म कर देते हैं ताकि आगे जाके टेंशन ना हो। जब कुछ नहीं होगा तो सब दान कर दीजिएगा पीएम केयर्स फंड में। ओके, शारदा बग्गा आप कुछ पूछ रहे थे? गौर साहब आता हूँ आपके पास में। जी हेमंत जी, नमस्ते। थैंक यू सो मच, आप इतने पेशेंटली और अच्छी तरह आपने एकदम कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को बहुत सिंपल कर दिया, तो धन्यवाद। और दूसरी बात जो आपने मज़ेदार बात की मैरिड डॉटर्स के बारे में, मैं भी एक मैरिड डॉटर हूँ और मेरे मुंह से सिर्फ अपने पेरेंट्स के लिए आशीष और अपने भाइयों के लिए आशीष निकलती है। तो आप ये बोलते हो कि मैरिड डॉटर्स आर अ प्रॉब्लम, नॉट रियली, क्योंकि मैरिड डॉटर्स को पेरेंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं कि वो अपने आप संघर्ष कर लेती हैं। लेट मी वो इंटरप्ट यू दुर्गा मैडम, हैं। लेट मी इंटरप्ट यू। यस मैंने वो शब्द यूज नहीं किया जो आपने शब्द यूज किया। आई नेवर सेड जी प्रॉब्लम, जी मैंने कहा मजेदार चीज है। जी, मजेदार, वही मजेदार, कानून में बहुत ये अच्छी बोला है चीज कि है। भाई बेटियों का भी हक है उसके अंदर। जी बिल्कुल होना भी चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। डॉटर्स तो आपकी ही है ना, बेटी तो आपकी है। अगर आप शादी करके दे रहे हो, और ये एक्चुअली ये मान्यता हो हमेशा है कि बेटी की शादी कर दिया तो अभी देने की जरूरत नहीं है, लेकिन बेटी को हमेशा आप ब्लेसिंग्स दो और अपना दरवाजा उसके लिए खोलो। ये यस इम्पोर्टेंट बात है, हर पेरेंट को वो करना है। मेरी 2 बेटियां हैं, तो इसलिए मैं यस हमेशा सोचती हूँ मैं बहुत लकी हूँ, क्योंकि आज मुझे एक बेटे के लिए मेरी बेटियों को घर के बाहर नहीं रखना पड़ रहा है, क्योंकि ये हमेशा एक प्रॉब्लम होती है जब भी बहू आती है या बेटे की थॉट ऐसी होती है कि नहीं सब मेरा है। यस, हमारी ये थॉट है। अभी कमिंग टू माय प्रॉब्लम, आई हैव अ वेरी थोड़ा सा डिफिकल्ट जोर से प्रॉब्लम। बोलिए ना मैम, जी स्लाइटली जोर से बोलिए। मेरी एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम है। मेरी प्रॉब्लम ये है कि माय हस्बैंड इज द यंगेस्ट सन ऑफ हिज पेरेंट्स। फादर इन लॉ गुजर गए 96 में। उन्होंने 84 में एक विल बनाई थी जिसमें उन्होंने अपनी वाइफ को लाइफ इंटरेस्ट दिया था, और 3 बेटे में से 2 बेटों को 1/3, एक बेटे को 1/3 और मेरे हस्बैंड को 2/3 शेयर दिया था अंडर अ विल। The will was not registered, sir. That is an issue, but that is also okay because that is his last wish. मेरे हस्बैंड ने प्रोबेट आज तक नहीं कराया, क्योंकि उनको हमेशा लगता था कि एक और भाई है मेरा, और मेरे भाई को जिसको नहीं दिया उसको भी देना चाहिए, इसलिए 1/3 कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि मेरे जो मिडिल वाले ब्रदर इन लॉ हैं, उन्होंने बहुत मार धाड़ करके हमें घर से, हम रहते थे साथ में, हम छोटे हैं, और मेरे फादर इन लॉ ने मेरे हस्बैंड को ये प्रॉपर्टी 2/3 इसलिए दी है, there's a reason. He left his education and he educated his elder brothers and he helped his father in the business. तो बाकी के जो बड़े 2 भाई थे वो पढ़ लिख गए, मेरे हस्बैंड पीछे रह गए, लेकिन कोई बात नहीं, वो अच्छे इंसान है, तो आई एम वेरी प्राउड। उनकी वजह से आज मैं लॉयर बन गई, क्योंकि ये प्रॉपर्टी की प्रॉब्लम की वजह से मैं लॉयर हूँ। आज मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ, और मैं थैंकफुल हूँ कि जो प्रॉब्लम्स मुझे आई हैं, मेरे हस्बैंड को हार्ट अटैक हुआ, घर से हमें निकाला गया, मेरा बच्चा 10 दिन का था जब ये मेरे हस्बैंड को हार्ट अटैक आया। चलो वो सब, एकता कपूर भी खुश होगी मेरी कहानी सुन के, लेकिन चलो वो सब साइड में रखते हैं। कमिंग टू द पॉइंट, जो बीच वाला भाई है जिसको 1/3 मिला था, वो घर में घुस के ही वॉज पोजेसिंग द प्लेस। आज वो बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में गई है, डीपी साइन किया गया है बाय द मैनेजिंग कमेटी ऑफ द सोसाइटी। उन्होंने बीच वाले भाई को, they have made him sign the development agreement and given the corpus to him. The flat is promised to him as a nominee. Now nominee में मेरे हस्बैंड भी थे हाफ एंड ब्रदर इन लॉ हाफ थे, विल में ब्रदर इन लॉ 1/3 और मेरे हस्बैंड 2/3। तो अभी प्रॉब्लम इधर आता है कि हाउ कैन अ सोसाइटी, और मजेदार बात यह है कि अगस्त में ब्रदर इन लॉ पैसे नहीं दे रहा था, तो 101, अभी वो 154 हो गया शायद, 101 अंडर महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 101 इनिशिएट किया था सोसाइटी ने, बिकॉज 8 लाख ड्यूज हो गए थे, 8 लाख रुपीज ड्यूज। तो उसके लिए मेरे हस्बैंड को बुलाया गया डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास कि आपको आधा देना पड़ेगा। लेकिन अगस्त में ये बात हुई 101, और अक्टूबर में सोसाइटी वेंट इन फॉर रीडेवलपमेंट
and we did not know because we don't stay there, sir. We are staying outside on rent. Now the thing is, October mein redevelopment mein society in the hurry, they have made him sign as a nominee, brother-in-law as a nominee, and given him the entire corpus. They have played a fraud basically. Now that is okay. Now coming back to my problem is that आज वो society demolish हो गई है. इसमें अभी ये जो भाई साहब अभी बात कर रहे थे गिफ्ट डीड के बारे में, मैं तो एक ही बात बोल सकती हूँ कि भगवान सबको सद्बुद्धि दे, क्योंकि आज जो हमारे ऊपर आ रहा है वो किसी को नहीं फेस करना पड़े. आज now we have to go for so many court cases. One is for I have to go for probate. I have to go to get a injunction order in the city civil court that 2/3 share of 2/3 corpus should not be disposed of. It should be kept in a corner under reserve. As well as there is the society has to be, and the builder and the brother-in-law has to be taken to court and under criminal charges for playing a fraud. Sir, क्या अभी इसका actually society cannot do all this. They cannot. आप कुछ suggestion दे सकते हैं मुझे और जो मैं कर सकती हूँ. तो I'll be very grateful, sir. Humble request है ये. आपने काफी कुछ तो कर लिया है, शायद आपने वो डेवलपर को भी पार्टी बनाया होगा. नहीं, अभी तक कुछ नहीं किया है सर. अभी तक कुछ इनिशिएट नहीं, क्योंकि राइट नाउ वी हैव जस्ट गॉट टू नो दिस हैपेंड. अभी हुआ है, अक्टूबर में हुआ, लेकिन हमें अभी मालूम पड़ा है फरवरी में. हमें कुछ पता नहीं था, क्योंकि हमें सोसाइटी ने कभी एक पेपर नहीं दिया. वी हैव बीन रिक्वेस्टिंग फॉर मेंबरशिप एज बीइंग नॉमिनीज, बट दे वर नॉट विलिंग टू मेक अस प्रोविजनल मेंबर्स आल्सो. तो बोलने आपके का पास वो मतलब वसीयत की कॉपी है क्या? जी है, मेरे पास है. उसमें से विटनेस भी डेड हो गए हैं. द सैड पार्ट इज विटनेसेस बोथ आर डेड एंड तो आपके फादर इन पास लॉ विल की जेरोक्स कॉपी है कि ओरिजिनल कॉपी है? ओरिजिनल है मेरे पास, ओरिजिनल. तो बाकी दो भाइयों के पास क्या है? उनके पास एक के पास तो पोजेशन था, और जो सबसे बड़ा था उसके पास कुछ नहीं था. लेकिन ये है और बस. तीनों भाइयों की मदर वो उनके पास लाइफ इंटरेस्ट था अकॉर्डिंग टू विल. तो अभी वो गुजर गई हैं 2017 में. और बाकी तीन भाई के अलावा और कोई नहीं है परिवार में? जी नहीं, नो सिस्टर्स, नो मैरिज सिस्टर्स, नोबडी. शारदा मैडम, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि मैटर का ब्रीफ छोटा सा की पॉइंट्स बना के मुझे व्हाट्सएप डाल दीजिए. जी, आपका एड्रेस फिर है व्हाट्सएप, आप जहाँ से इनवाइट लिया है ना वहीं से मेरा जी, जी. नंबर भी है, बट एनीवे यू कैन नोट इट डाउन. जी सर. 9820 9820 174 जी 108. जी जिस इनवाइट से आपने ये वेबिनार ज्वाइन किया जी उसी में जी मेरा नीचे समझ नंबर भी है, जी जी तो यू कैन ऑलवेज कोऑर्डिनेट. जी सर. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच. वेरी ग्रेटफुल सर. थैंक यू. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. मिस्टर सत्यनारायण. हाँ जी सर. नहीं नमस्ते, कुछ नहीं. हाँ, आपने बता ही दिया था. वैसे मेरा इशू तो था ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेथ ऑफ ए मेंबर. ये 154(b)(13) में है. और जो फनी पार्ट आपने बताया वहीं पे मुझे आपका ध्यान आकृष्ट करना था, लेकिन मैं आपको एक बार पढ़ के सुनाता हूँ. प्रोवाइडेड दैट सोसाइटी शैल एडमिट नॉमिनी as a provisional member after the death of a member till legal heir or heirs or a person who is entitled to the flat and shares in accordance with the succession law or under will or testamentary documents are admitted as member in place of such deceased member. उसके बाद में फनी पार्ट चालू होता है. Provided further that if no person has been so nominated, society shall admit such person as provisional member as may appear to the committee to be the heir or legal representative of the deceased member in the manner as may be prescribed. तो ऊपर तो ठीक है as may appear, ये उनको डिस्क्रिशनरी पावर दिया है, लेकिन ये नीचे लिखा हुआ है as may be prescribed. तो क्या प्रिस्क्राइब किया हुआ है ये जानना चाहता था मैं. अब प्रिस्क्रिप्शन का ऐसा है कि लीगल हायर कौन है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन है, कोर्ट का ऑर्डर्स है क्या लीगल रिप्रेजेंटेटिव बनने का. आप खाली अपने आप को तो बोल नहीं सकते हो कि मैं इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है. लीगल रिप्रेजेंटेटिव के लिए तो कोर्ट का ऑर्डर लगने वाला है. तो अगर ऐसा कोई सामने व्यक्ति आ जाता है और ये कहता है कि भाई
ये अनिल भाई इसका वारिसदार है, मैं इसको जानता हूँ वगैरह, तो उसको डिस्क्रिप्शन में वो बना सकती है। अब ये तो पैराग्राफ ही जो है वो पूरा डिस्क्रिप्शनरी दिया हुआ है। एज में एपियर का मतलब क्या हुआ हाँ कि वही भाई मैं अपनी मन मर्जी से किसी को भी बना सकता हूँ। और यहाँ पे नीचे लिखा है एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, यानी समथिंग हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड और ऑन द बेसिस ऑफ दैट ओनली दे हैव टू मेक। अभी देखो ये जो एक्ट है ये जुलाई 19 में बना हुआ है, ठीक है ना, ये वाला अमेंडेड वाला। अब उसके बाद में जो रूल्स बने हुए हैं, एक दो रूल्स भी बने हुए हैं, लेकिन फिर भी ये वाले सेक्शन में इसका रूल्स वगैरह कुछ नहीं आया हुआ है। तो देन नाउ वी हैव टू गो बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट ओनली इन दिस थिंग और द सक्सेशन एक्ट। यू डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन। राइट सर। अभी एज मे अपीयर टू द कमिटी टू बी लीगल हायर। अपीयर टू द कमिटी मीन्स वो कमिटी बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे दो फिंगर रख के ये बोलेगी मुझे ऐसा लगता है कि वो जो काम वाली बाई है ना वो एक्चुअली उसकी बीवी थी। तो ये उसको बोलने में क्या तकलीफ है, या कानून में कौन सी बंदिश आती है, क्योंकि कानून का तो ये सेक्शन सामने लिखा हुआ है, ये तो लेजिस्लेटिव एक्ट है। तब क्या होता है उससे, तब क्या बोला जाता है, वो बोलेगा मुझे ऐसा लगता है, ऐसा लगा हाँ, कि भाई वो जो अभी ये अनिल शर्मा है वो बोलता है वो कि वो जॉन डिसूजा आके, मुझे ऐसा लगता है कि वो जॉन डिसूजा इन्हीं का लड़का है वो। एज में एपियर, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा सपना आया, एज में एपियर, आई एम हेलुसिनेटिंग, आई हैव बीन गिवन द पावर टू हेलुसिनेट, टू इमेजिन, टू हैव एन इल्यूजन, क्या हाँ ये उसका बेटा हो सकता है। अब ये क्या कानून बनता है मेरे समझ के बात बड़ा विचित्र दिया हुआ है। हाँ ये इनिशियली आपने डिस्कशन में लिया है ना, लेकिन बाद में आपने ले लिया। मेरे दिमाग में यही बात थी कि इसके ऊपर थोड़ी चर्चा हो जाए। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। और कुछ इनपुट देना है सर आपको इस फनी प्रोविजन के बारे में? नहीं सर, बस कोई था मेरे दिमाग में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन सर। ओके, एक दो क्वेश्चन है चैट बॉक्स में। हेलो हेलो सर, एक क्वेश्चन। हाँ मिस्टर शाह बोलिए। सर सेल्फ जनरेटेड प्रॉपर्टी रहती है तो अभी आपने बताया कि बच्चे लोग को देंगे तो प्रॉब्लम होती है, गिफ्ट के द्वारा भी, तो डोनेट करेंगे तो सेम प्रॉब्लम नहीं होगा? डोनेट किसको करना है सर जी? किसी को भी, XYZ को किया डोनेट, परिवार को डोनेट करना है? डोनेट करे नहीं, डोनेट आउटसाइडर को किया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बच्चे को दिया तो प्रॉब्लम हो जाती है। नहीं, आप क्लियर बोलिए, परिवार को बच्चे को डोनेट करोगे या आउटसाइडर को डोनेट करोगे? मैं दो क्वेश्चन है। सपोज बच्चे को डोनेट करते हैं तो कंफर्मिंग पार्टी है, ये सबकी परमिशन लेनी पड़ती है, ये सब बोले आपने, बराबर है अभी? हाँ, बराबर। लेकिन आउटसाइडर को डोनेट करते तो ये प्रॉब्लम कभी नहीं आती है। अगर आपका सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है तो आप अपने प्रॉपर्टी का कुछ भी कर सकते हो। तो बच्चे को दिया तो? आपने पूछा मेरे को तो मैंने उनको वाया मीडिया बताया, उनको ये चिंता थी कि भाई उसके बाद में भी प्रॉब्लम करेंगे, तो उसमें बाद में प्रॉब्लम करेंगे तो जो जिसको डोनेट कर दिया, अभी बाहर मंदिर को डोनेट कर दिया, हाँ, तो उसको जो मंदिर को प्रॉब्लम होगी उसके परिवार वाले से कोई संबंध नहीं लेना देना। तो वहां पे बच्चे लोग, मैं आपको ये भी बता दूं मैं कि आप गिफ्ट डीड बनाओ या ना बनाओ, आप विल बनाओ या ना बनाओ, डोनेट करो या ना करो, एवरीथिंग कैन बी चैलेंज इन द कोर्ट। ओके, कोर्ट में चैलेंज करने के लिए आपको कोई बंदिश नहीं है। किधर भी डिस्क्रिप्शन है कि आपको ऑर्डर वैसा प्रोवाइड करेगी, उस समय आप बताइएगा कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, हर चीज नहीं बोल पाओगे ना कोर्ट में सर आप। नहीं, लेकिन किसी ने डोनेट कर दिया तो ये इज नॉट ए लीगल ओनर। अगर डोनेट कर दिया लीगल ओनर बन गया, लेकिन आपके वारिसदार जो हैं उसको चैलेंज कर सकते हैं। फिर भी वो चैलेंज कर सकते हैं इफ इट इज ए लीगल डॉक्यूमेंट, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट रहेगा, एवरीथिंग। अपने भारतवर्ष में हर डॉक्यूमेंट को चैलेंज करने का प्रोविजन दिया हुआ है। किधर भी कोई भी कानून में ये नहीं बोला है कि भाई ये करने के बाद में तुम चैलेंज नहीं करना, इसको तुम चैलेंज नहीं कर सकते। तो फिर हम लोग प्रॉपर्टी किसी से परचेस करते हैं तो उसमें भी चैलेंज हो सकते हैं ना कभी भी? यस पक्का होता ही है, ऑलरेडी होता ही है, कई केसेस चल रहे हैं कोर्ट में। पक्का सेल डीड कर दिया, वो नॉमिनी था उसने बेच दिया, सेल डीड भी रजिस्टर हो गया, सब कुछ हो गया अनजाने में,
लेने देने खा पिला के सब कुछ हो गया हाँ, और बाद में असली वारिसदार सामने आ गया तो वो चैलेंज नहीं करेगा वो। ओके ओके, थैंक यू सर। Okay, anybody Sir, I else has want to any talk, questions? sir. I want to talk, sir. Okay, go ahead, Mr. Megur. हाँ सर, अभी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन पेपर में फर्स्ट वाइफ का नाम है, सेकंड हस्बैंड का नाम है, उसमें परसेंटेज कैसे कैलकुलेशन करेंगे सर? अगर परसेंटेज एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, एग्रीमेंट में नहीं लिखा है सर। तो अगर नहीं लिखा है तो 50-50 रुपया मिलेगा दोनों को। अच्छा, नहीं लिखा है तो 50-50। अगर लिख सकते सर ऐसे 60-40, 80-20? अगर प्रॉपर सीजन्ड लॉयर है, प्रॉपर्टी लॉयर है, हाँ, तो वो लिखता है। ओके सर, ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। सर एक प्रॉपर्टी कितने नाम पे हो सकती है, यानी जब परचेस करेंगे तभी? क्या कह रहे हैं आप? एक प्रॉपर्टी जब बाय करते हैं तो उसमें कितने आपकी नाम आवाज डाल नहीं आ रही, सकते आपका हैं? बैकग्राउंड बहुत 5, जोर। सर आपकी बैकग्राउंड आवाज कट करिए फिर आइए सामने। हेलो, हम लोग जब प्रॉपर्टी परचेस करते हैं तो एग्रीमेंट में कितने नाम डाल सकते हैं? 5, 6, 7 जितने डालने हैं उतने डाल सकते हैं। हाँ, आप 10 नाम भी डाल सकते हो, 100 नाम भी डाल सकते हो, कोई बंदिश नहीं है सर इसके अंदर। कोई बंदिश नहीं है। Anybody has any other question before we conclude? We are nearing our closing time also. Incidentally, I invite anybody who is willing to speak on our Saturday evening webinars on topic of society related or property related, society property related, then they are welcome to speak as our lecturer, as our guest, and share your good and bad experiences, your knowledges. This will help to, you can speak and support and motivate other members also. So if anybody is interested, please send me a WhatsApp message and then we will organize it. Somebody else wanted to ask any question? I would like to say thank you very much for you, sir. You have given a very good information. ये कहीं मिलेगा नहीं, कहीं पढ़ेगा तो भी मिलेगा नहीं, YouTube में भी मिलेगा नहीं। 1-to-1 आपने बहुत अच्छा ये दे दिया हमको, आज इन्फॉर्मेशन दे दिया। थैंक यू वेरी मच। आपका भी धन्यवाद वेबिनार में ज्वाइन करने के लिए सर जी। Hemant ji, thank you so much, sir. And today you had a nice time. I guess you laughed a couple of times, sir, this time. Sir, thank you for very good knowledge, sir. इसके पहले सर आप you have been always quite serious. This time you had laughed at least a couple of times. 4-5 दफे आप मेरा फेस का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सीरियस टाइप का स्ट्रक्चर है। नहीं, ऐसी बात नहीं है सर। आज का जो टॉपिक भी था ना, वो प्रॉपर्टी डोनेट करने का, वो सब में तो यू आर एंजॉयिंग दैट टॉक सर। एनीवेज वी आल्सो एंजॉयड। थोड़ा मेरा एक्सपीरियंसेस मेरे को ध्यान में आ जाता है तो ऐसा लगता है कि लोग क्या क्या सोच सकते हैं और क्या क्या बोल सकते हैं कि मैं अपने पुत्र मोह में, संतान मोह में मैं क्या क्या कर देना चाहता हूँ और क्या क्या नहीं कर देना चाहता हूँ। तो मैंने फिर थोड़ा सा ये बोला कि ठीक है भाई, अगर ऐसा कोई तकलीफ वाली बात है तो डोनेट कर दो, बच्चे अपने अपने पैर पे खड़े होंगे। आप जैसे अपने पैर पे खड़े हुए, आपने कहा कि मैंने प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर किया हुआ है, मेहनत करके एक्वायर किया है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मेहनत करके एक्वायर किया हुआ है तो आपके बच्चे भी एक्वायर करेंगे, उसमें क्या है। कब तक आप उनका गॉडफादर बन के रहोगे। एग्जैक्टली। यू आर नॉट गोइंग टू, in normal circumstances you are not going to outlive your child. Yeah, that's true. And if it is you are not going to outlive your child, so let him live on his own also, no? आप खाली भारतवर्ष का क्यों देखते हैं? अमेरिका में, यूके में क्या हो रहा है पता है आपको? 14 बरस का बच्चा होता है, 16 बरस का बच्चा होता है, वो पॉप्स को बोलता है, बाबा आई विल मैनेज माय ओन शो। Yes, and how to what extent you could keep on spoon feeding the kid, you know? And he goes to military and he becomes an astronaut also, और बड़ी बड़ी पदवी हासिल कर लेता है। अगर वो पेरेंट्स के छत्र छाया में रहेगा तो 9 to 5 की नौकरी करता रहेगा जिंदगी भर। बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल सर, दैट्स राइट। अच्छा, एनीवे मिस्टर अनिल, आप कुछ पूछ रहे थे पात्रोबे साहब? सर आज का जो वेबिनार था वो बहुत ही बढ़िया हुआ। एक्चुअली मैं अटेंड नहीं करने वाला था लेकिन किया मैं,
एक रिक्वेस्ट है कि इसका जो आपका YouTube लिंक आप भेजते हैं ना 15-20 दिन के बाद, तो इसको आप थोड़ा सा 15-20 दिन तो जल्दी नहीं लगते, लेकिन 2-3 दिन लग जाते हैं। हमारा वेब मास्टर जब फ्री होता है ओके ओके तो वो कंपोज थोड़ा करता है। थोड़ा सा उनको बोलिए ना सर, इसका कुछ काफी कुछ मेरे को फिर से सुनना है, क्योंकि मैं बीच में 1-2 मिनट स्किप किया है यस सर, ना, और ये we'll do काफी sir, we'll interesting था। publish this YouTube as soon as possible sir। बहुत ही मजा आया आज। ठीक जैसे है सर, साहब ने थैंक यू बोला, वेरी मैंने मच। हंस दिया, इसके लिए मजा आया क्या? नहीं काफी एक ही टॉपिक में कितने सारे सब ब्रांचेस निकले आज, वो सबके व्यूज अलग अलग, अपने बच्चों के प्रति अलग, बीवी के प्रति अलग, ये सब। अभी मैं भी एक एडवोकेट हूँ, तो मुझे भी अभी सोचने को मजबूर हो गया कि अब कैसे करने का। लेकिन हेमंत सर ने आज बहुत अच्छी राह भी दिखाई है, कंडीशनल। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अभी जितना मैंने आपको मेरे कैपेसिटी थी एक्सप्लेन करने की, उसका मैंने लगभग 10% मेरा नॉलेज शेयर किया। इसमें इतने ढेर सारे ट्विस्ट्स हैं और स्ट्रेटेजिक ट्विस्ट्स हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया कि 90% केस जो कोर्ट लिटिगेशन चल रहे भारतवर्ष में, वो सिर्फ प्रॉपर्टी रिलेटेड है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी रिलेटेड है। तो इसमें बहुत सारे लेकुनस हैं, और जैसे हमने आज जॉइंट विल पे डिस्कस किया, कंडीशनल गिफ्ट डीड पे डिस्कस किया, वैसे और भी कई चीजें हैं जिस पे हम डिस्कस कर सकते हैं। एनीवे, थैंक यू एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग टुडेज वेबिनार। With the permission of all our participant friends, we will conclude today's webinar. Thank you all friends for attending and supporting this knowledge sharing webinar. हेमंत सर, एक रिक्वेस्ट था, कभी सेशन ले सकते क्या कंपनी लॉ सूट के ऊपर? मेरा एक कंपनी लॉस के ऊपर, हाँ, कंपनी लॉ सूट। मेरा एक प्रॉपर्टी है, बहुत बड़ा प्रॉपर्टी में फंसा हुआ हूँ। कंपनी बैंकरप्ट हो गया, बिल्डर बैंकरप्ट हो गया, उससे पर प्रॉपर्टी अटैच हो गया, वो कंपनी लॉ कोर्ट में गया हुआ है। तो अभी उसमें मेरे को हेल्प नहीं मिल रहा है, और कोर्ट का खर्चा इतना है कि मैं खर्चा कर नहीं पा रहा हूँ। सर आज हमारे वेबिनार में बड़े बड़े एडवोकेट्स भी हैं, आप मैं आपको 1-to-1 कांटेक्ट कर रहा हूँ, उनसे भी कांटेक्ट कर लीजिए। जिंदाल साहब है एडवोकेट, सत्यनारायण साहब है, मोरे साहब हैं, और अनिल पात्रोबे साहब हैं। These are all experienced people, sir. Anyway, welcome. Thank you everybody. Wishing all friends a healthy and peaceful life forward. Yes, thank you thank you and very much. bye bye.